talking my PhD in linguistics. Today I'll be talking about communication skills, but it's going to be contextualized in a medical context. Um, but before I begin this, I would like you people to give little bit introductions of yourselves because I would like to know about my audience first, whom I'm interacting. Can we begin that? And before you do so, please unmute yourselves because I just made a mistake. I kept on speaking to you people, nobody talked because I was unmuted, so nobody could understand. So please, half a minute. Assalamu alaikum, Dr. Ayesha. वॉइस ब्रेक हो रही है. Why is it so? I don't understand. Maybe it's the internet connection that's causing this all. Can you people not hear me? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही थी. जी जी. अच्छा, maybe it's because of internet connection. I don't know. अच्छा, I was speaking all the time. आप इंट्रोडक्शन करा रही थी ना? मुझे brief introduction चाहिए आप लोगों का, if you don't mind that. जी जी. Can you people quickly give me? जी जी. Dr. Ayesha, I'm Dr. Kuratulan Mushtaq, Associate Professor Obs and Gynae at CMH. I have done the certificate course in medical teaching from UHS, and I have been doing workshops at CMH related to medical education. Assalamu alaikum, Dr. Ayesha. I'm Dr. Pakiza. Assalamu alaikum. I am Dr. Pakiza Aslam, Associate Professor, Gynae Department, CMH Lahore Medical College. I have also done previous certification in the medical education, and now I've started this course. Thank you. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum. I am Dr. Himayatullah. I am Assistant Professor of Medicine, and I work in Shakra University, Riyadh, Saudi Arabia. Assalamu alaikum. I am Dr. Arif Kamar, and I'm currently working as demonstrator in School of Health Professional Education, CMH LM Singh. Wonderful. Assalamu alaikum. I'm Major Sadia. I'm an obstetrician gynecologist posted at Tech right now. Great. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sarwat Homa. I did my residency in radiology, and currently I'm staying at home in Riyadh, Saudi Arabia. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Prana Zubeda, and I'm working as consultant gynecologist in CMH Junior. Anybody else who wants to read? Okay, so anybody else who wants to introduce? We are done with it. Assalamu alaikum, ma'am. I'm Colonel Dr. Khizar Mukti. I'm presently serving in CMH Lahore Medical College, ma'am. Is there anybody else who wants to introduce? Ma'am, should I repeat my name again? Colonel Dr. Khizar Mufti from CMH Lahore Medical College. Sir. Yes, I totally understood. Thank you so much for your introductions. Okay, let's begin this.
workshop, and it's going to be interactive workshop because I believe in interacting with my uh, the participants here. All right. So today I'm just going to be a facilitator, and it's you who's going to be doing a lot of activities here. It would have been a better, workshop if we most of the activities they are more suitable if we were in face-to-face mode. But let's make it, something successful. Okay, so I'm going to begin with this activity, and I would like you people to participate in that. Where is that? Let me find out the site. Where is it? I can't find the site yet. Now, where is it gone? Just wait a minute. I have to stop this share because I can't find those sites. This is just wait a minute. Okay, let's begin with this because I can't find those slides. I'm just going to ask you a simple question that what do you think is the difference between communication and knowing the language? Can somebody talk about that first? Madam, communication is not just knowing the language. When you communicate, you have to ensure that the other person is also understanding what you are communicating, what you are saying. Okay. I So, I Ji. sorry. I believe communication is the action that we are doing, and language is the mode or format that we're using to conduct that action. मैडम कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी तो होती है, लैंग्वेज ना भी आती हो. Okay. Anybody else would like to? It's not just we have to have, the verbal and non-verbal aspects of communication, both of them, they're really, really important. So when we talk about non-verbal expressions, what do we mean by that? What is included in non-verbal expressions? And gestures, Gesture, written hand communication, movement, body language. written communication. Yes, that is also included. Written communication included in that. Sorry, ma'am, can you repeat the question? I'm asking when we talk about body language, what is included in our body language? What is Gestures, important in our body language? Gestures, posture, facial expressions, facial our expression, posture, posture, yes, eyes, and what else? mm, Eye contact is eye very, very contact, important. Talking जी, about that, yes. और Mm-hmm. Madam, actually, communication is a one
Language is a one tool of communication. We can Yes, language is communicate a tool through of different communication. tools, and language is one of them. That's very true. That's very true. So when we are going to be talking today about communication, it's not that, and when we're talking about such a great, audience who are coming from, who are doctors as well as it's a diverse audience. I can see that people here are also from abroad, like people are from Saudi Arabia, and I could see that there are different people from different disciplines here. So it's not that I'm going to be talking about your language that's problematic. It's the communication skills that the most doctors as well they face problem in when they are interacting. The patients Madam, communication is an art by which you can deliver your knowledge, skill, and attitude by any tool to some other. सॉरी मैम, कोई आवाज नहीं आ रही. वो मुझे लगता है डॉक्टर आयशा का ना इंटरनेट ब्रेक हुआ है, वो रीजॉइन करेंगी अभी. Dr. Aisha, we can't hear you if you can hear me. Can we give her some time, like 5 to 10 minutes to work on the network connection? Yes, please. Yeah. Dr. Aisha, आप 5 मिनट आराम से ले लें, 5-7 मिनट, ताकि आप कनेक्शन कर लें मैनेज. वो भी मीटिंग में नहीं है, अब आई है. I'm so sorry. Today we have a lot of problem in this network connection, and it's breaking uh, time and again. But okay, let's move on. Okay, so all right. So where were we? What were we talking about? We were talking about communication, and we were talking about language. We were linking language with communication, and how language and communication can be different from each other as well. That is, we can say that all of us, we know our language, we know Urdu perfectly, we know English perfectly. But the thing is that when it comes to communicating with others, there we find problems. And why is it so? Can we talk about those problems? That why do we find problems when we are interacting with people? Like not only patients but also our peers. Why is it that we find problems? Can somebody elaborate on that? Because we can't express properly, because it's the exchanging of thoughts between two or more than two-person. This is communication, and we don't have the idea how to exchange those thoughts in writing or speaking or gesture. So if we have a very good idea about communication skills, so we can express our thoughts in a better way. Right, but why is it that we can't express ourselves? Or why are you saying that we do not know how to express ourselves? What is the reason? What are the barriers to it? As we just said that we know our language very well. So why is it that we cannot express ourselves? What are the barriers? Madam, it depends upon the receptivity of the audience as well, not just the person who is trying to communicate.
And also That's true. there are different communication styles, and everybody is receptive to a different communication style. So it's one barrier as well. Very true. Anybody else who wants to add in? Namely, language situation, there's a different situation environment which can increase the communication. It's an art which depends upon the personality, how you will deliver your knowledge. There are different factors. Exactly. And when it I comes, Aksa? I also think it makes you feel connected. For example, when we go to a country that's not our homeland and we don't know their language, and even if we're trying to communicate in gestures and cannot talk or use their language, it does not make us connect unless until we feel comfortable in gestures. So it gives us a connectivity as well. All right. मैडम बैरियर्स लाइक अभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था तो दिस इज आल्सो अ बैरियर इन कम्युनिकेशन Very जैसे true. Very true. इमोशनल बैरियर हो सकता है अगर आप मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही तो फिर मैं आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगी कि इस वक्त मेरी फीलिंग्स क्या हैं लैंग्वेज बैरियर हो सकता है हम एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाते मैडम जैसे जेंडर बैरियर होता है ना जो मेरा प्रॉब्लम है वो मेल का प्रॉब्लम नहीं होगा जो मेल का प्रॉब्लम है वो मेरा नहीं होगा सो वी विल नॉट अंडरस्टैंड Exactly. ईच अदर मैडम कल्चर बैरियर्स होते हैं कि हम मेरा कल्चर है कि मैंने पर्दे में रहना है और अगर एक वेस्ट का कल्चर है कि उन्होंने किस तरह रहना है तो वो एक बैरियर आ जाएगा जैसे बहुत सारी बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप पर्दा ना करें आप स्कार्फ ना लें इस तरह के तो वो इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं अगर मेरा अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वो मेरी बात नहीं समझ आएगा परसेप्चुअल बैरियर्स मतलब वो परसीव ही नहीं कर पा रहा तो इस तरह के सारे बैरियर्स होते हैं That's very true. That's very true. Today we will be talking about communication in spontaneous situations. I'm not going to be talking about communicating while it comes to public speaking or it's planned speaking, but this is spontaneous situations that are really very important. When I talk about spontaneous situations, speaking situations, because it is linked to your medical communication as well when you are in a situation when there are patients who are coming to take consultation from you. So it is a spontaneous speaking situation that matters to us most of the times. So what happens that when we are in spontaneous speaking situation, what is it that we find most difficult when we are in spontaneous speaking situation? When we have to just speak without preparing anything, what happens at that time? And the Madam, audience is unknown as well. When we have strangers, what happens? हमारा थॉट प्रोसेस कोहेरेंट नहीं होता फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कोई पेशेंट इमरजेंसी मैनेज करके आए और हमने आके उनके अटेंडेंट्स को कम्युनिकेट करना है तो अगर हम थोड़ा सा टाइम ले ले चीजें अपनी ऑर्गेनाइज कर ले फिर उनको एक अच्छी जगह बिठा के आराम से कम्युनिकेट करें हमारी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी पर अगर हम आते सार फौरन से कम्युनिकेट करेंगे हमारा थॉट प्रोसेस कोहेरेंट नहीं होता और दूसरा जो जैसे अगर हम जैसे मैंने कहा कि हम बैठ के आराम से करें अगर हम खड़े में इस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी मैटर कर रहे होते हैं स्पॉन्टेनियस में मैडम अगर विदाउट इंस्ट्रक्शन और कोई वर्बल क्यूज के अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं वर्बल नॉन वर्बल विद योर एक्सप्रेशन बिल्कुल जी बिल्कुल एनीबॉडी एल्स So how many of you feel like, you are all experienced doctors, but can you please tell me, can you please share me your experiences? Do you feel anxious when you are in spontaneous speaking situation? Yes, ma'am. Spontaneous is always more difficult. क्योंकि आपके पास अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं होता. So what do you do when you feel anxious, when you have this anxiety that I have to speak in front of strangers? What do you have to do? अगर स्पॉन्टेनियस करना हो फिर तो
I always like to take a moment and organize my thoughts and try to settle into the environment and then talk about the situation. But generally, I try to limit the communication at the moment, so and replan it at an other time when we can discuss it in detail in clinical situations. Okay, And that's maybe if we wonderful. keep encountering that situation more oftenly, that is, if we practice more, so it gets better gradually. And All try right. to avoid the medical jargons, I mean the technical terms we are using. Try to avoid them, then the other person can better understand me. That's true. That's a very, Avoid very important medical factor. jargon. Ji. Yes, that's very important when we are communicating to audience who is mostly medical illiterate. I'm not saying that they are illiterate, but they are medical illiterate. It's important that we try to come down to their level and then speak. We try to come down to their language and then speak. It's really important at that time. Okay, so as you all मैडम said that we जेस्चर्स keep. और बॉडी लैंग्वेज और मेरा पोस्चर भी मैटर करेगा कि मैं उसके साथ कितनी एम्पैथी से बात कर रही हूँ, जी, मतलब बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर इम्पोर्टेंट है इसमें. then that's मैडम true. That's रेसिपिएंट का भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपको आगे से जैसा जेस्चर और जैसा एक्सप्रेशन या करेंगे उससे आपका कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है स्टाइल. Bilkul. It's so for a healthcare professional, it's really very important to keep on gauging the audience, that what are their expectations. They are going to be totally strangers most of the time, so they have to keep on understanding their personalities, and they have to keep on making their communication according to the level of their audience. So it's really very challenging for healthcare professionals to um, communicate with different kind of audience. So as we were just talking about anxiety management, and it's really very important that we have all these barriers with us, but we need to, understand how to deal with these barriers as well. So the first thing is that I have noticed most of the times, and I myself, sometimes it happens that we cannot pay attention to very little details that somebody is speaking to us. And most of the times, the problem occurs when we do not pay attention to all the details that are given by that person. So most of the times, what we do, we skip the details and we try to understand what we want to understand. And by that, what happens that most of the times, what happens that there is a problem in communication, that the person would not be understanding because you yourself as a communicator will not be understanding because you were not listening to the problem that was given, right? So it's important to pay attention to the smallest details that are there. And as Ms. Kuratulan just talked about it, that she feels anxious when sometimes it happens that we have to talk in spontaneous speaking situations. We feel anxious. So the thing is how to handle that. And today we'll be talking about these aspects as well. Okay. So it's really very it's something that's been researched on as well, that anxiety is something that is a real thing, and how to go about handle that anxiety, that's important. um, so first of all, when we feel anxious, really important that we tell ourselves, okay, it's me who's getting anxious, and we have to greet our anxiety. That's the first thing. That's the first step, that you are encountering yourself, that okay, fine, I'm feeling anxious and I need to manage my anxiety. All right. So this is something that you will be telling yourself, that you are standing in front of an audience who is, unknown audience, and you feel anxious. The first thing that you will be telling yourself, you're acknowledging this, that I am feeling this anxiety and I have to treat my anxiety. Okay. So this was a study that was done in Chapman University, and in this study, the participants were asked that what are the
different things that they fear when they have to, interact with people. And the thing is that amongst identity loss and all other factors, it was the uh, anxiety to speak of in front of others. That was one of the factors that the participants counted as a really very important factor. Okay, so the first thing that you have to do is you have to get out of your own way. We as communicators, we come in our own way when we are talking to others. We are so much thinking about it कि जी, we are fearful of speaking in front of others. So that is the reason that causes um, a lot of problem in communication. And then we have to reframe a situation as an opportunity. So all the speaking situations that we are given, we have to think about them as an opportunity rather than thinking about that situation as a challenge. We need to think about that as an opportunity to speak with others, as an opportunity to talk to others. So the first thing that we have to do is we need to listen and respond. There are various ways of dealing with a situation. Sometimes what happens is that we are given a situation, somebody is speaking, and instead of listening to that person and responding that person well, what we do most of the time, we assume and we react. So we do not have to do that thing, that we do not have to react and assume, because most of the problems of communication, they occur when we are assuming and we are reacting to the problem. So the most important thing when in communication is to listen to other person, what that person is trying to tell you. You have to listen to that person in details, and then instead of reacting to that person, we need to respond. All right. So any observation about that in your context? Can anybody talk about that when you are in your medical interaction? Have you ever faced a problem when you're not listening to your patient and rather reacting to that patient? What happens? Has anybody confronted such kind of problem? Ma'am, sometimes the tenants, the family members or the patient you are communicating with, they give you the feedback that the doctor or you did not listen to them and talk too much. So it is, or sometimes if you listen to them and let them respond, then the direction of your communication changes. मतलब वो बात हो ही नहीं रही होती जो आप कह रहे होते हो, और वो कुछ और पूछना चाह रहे होते. तो once you listen and respond, तो चीजें बेहतर हो जाती हैं. बिल्कुल, you're very right about that. Anybody else who wants to talk about that? From your own personal experience, have you ever experienced such kind of thing? Then that you, because of the shortage of time or any other factors, they were there, and you were interacting with your patient, and you were not able to listen to that patient properly. You were not willing to listen to the patient, and you reacted. What happened? Can anybody talk about that? Madam, sometimes basically, only listening can solve the problem. अगर हम patient को सिर्फ सुन लें तो वो happy हो जाता है, और इतना ज़्यादा हमें उसको बाद में problem को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिर्फ मरीज की बात सुन लेने से ही उसको आराम आ जाता है काफ़ी हद तक. जी, ये मैंने भी कई दफा सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है as a patient myself. That if the doctor is listening to the patient properly, half of the problems are solved, right? And if the doctor is giving the positive gestures like eye contact with the patient and nodding his head and keeping positive gestures and saying things like, in the middle of the conversation, keeping an interaction in a way that is using hedges or using the words like yes, I mean, these kind of words it is using. So what happens,
that the patient feels, you know, he would be feeling that, okay, fine, I should continue my talk, and I'm somebody who's listened to. So you'll be really encouraged to speak. You'll be really encouraged to say whatever he wants to say, and disclose all his problems openly. Then, okay, all right. So now I'm going to be showing you. I'll be sharing with you a video, some videos. You'll be watching those videos, and I would like to do this um, little activity with you guys. You have to listen to, and you have to observe all these videos very carefully. And we're talking about the barriers in interaction as well as the facilitators. What are the linguistic? We are going to be talking about the linguistic elements there. What are the barriers as well as facilitators in interaction? So let me take out this video for you guys. Can you mute yourself? I'm not talking about a song or something like that. Let me open this. Okay. Can you all see this video? Loading. Starting. Load हो रही है. I need to turn on the audio as well. Just wait a minute. Here's some. Okay, before. Assalamualaikum, Dr. Ji. Ji, can you all hear this? Yes, we can see. All right. Yes, ma'am. Okay, I'm starting it again. क्या नाम है आपका? जी मोहम्मदीन नाम है. मोहम्मदीन. कितने उम्र है आपकी? 65 साल हो गए. मोहम्मदीन, क्या करते हैं आप? जी चौकीदार कोई दसी ते हुन कोई काम नहीं होता. तो किस मसले से आए हैं आप? जी ए वेखो हाथ सुजे हुए ने ते गोडियां विच भी बड़ी पीड़ होंदी है ते ए जेड़ा खब्बा पैर है ना ਇਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. दर्द होती है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा. जरा अपने हाथ करें. अच्छा, ऐसे करें. अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर जी. वालेकुम अस्सलाम. आए बैठिए. क्या नाम है आपका? जी मोहम्मदीन नाम है. मोहम्मदीन. कितने उम्र? जरा अपने हाथ करें. क्यों नहीं? वो छोड़े, आप ये बताएं आपकी डाइट में यूरिक एसिड की इनटेक कितनी है? एसिड की हो गया है? मैं एसिड नहीं पीता, मैं पागल थोड़ी हूँ. ये अच्छा, ये बताएं यूरिनेशन ठीक है आपकी? आपको किसी मर्ज के लिए डायूरेटिक्स तो नहीं प्रिस्क्राइब? की बोली जा रहे हो तुसी? कोई समझ नहीं लगती पई. अरे पहली दफा डॉक्टर के पास आए क्या? पेशाब का पूछ रही हूँ आपके. ठीक आता है आपको? हाँ जी ठीक है मेरा पेशाब. अच्छा ये बताएं कि किडनी में दर्द तो नहीं रहती? यूरोलिथियासिस भी डाउट का एक मेजर साइन होता है. किंज दी बोली जा रहे हो तुसी? कोई समझ नहीं लगती पई मैनू. इंज बोलोगे तो मैनू कोई समझ नहीं लगूगी. कोई सवाल का जवाब नहीं देना मैं तुहाडे. अरे डॉक्टर, मैं इलाज मैंने आपका करने, समझ मुझे आने चाहिए. तुसी इंज करो, तुसी रहन दियो, मेहरबानी तुहाडी. मैं किसी और तो करा लूंगा अपना इलाज. Okay, guys, this is one of the simulations that we made. This is something that was created by medical doctors. So can you please talk about the problems in interaction here?
Madam, language barrier and medical jargons. Let's not do it like that. I'm going to, uh, you can use whiteboard in order to talk about this, and then you can share these opinions. I'll be showing you more videos like that. So if I send you guys to breakout rooms, let's talk about this there. Okay. So let me send you guys there in breakout rooms. Let's talk about it there. Um, we have how many participants here? 15 participants. Okay, I'm creating 5 free breakout rooms. You can use whiteboard, you can use anything, and then we have to come back here and talk about it. Please join the rooms, guys. हाँ तो एक तो वो उसको रूट उसका मेडिकल जार्गन बहुत ये था। व्हाइट बोर्ड पे लिखना है। व्हाइट बोर्ड कोई ऐप है? पता नहीं, इसमें आ तो रहा है लेकिन ये कैसे? इधर जैसे Zoom मैं जरा आपको Zoom बताती पे हूँ आता है कि ये व्हाइट लैंग्वेज बोर्ड। बैरियर था, इमोशनल बैरियर था, थोड़ा सा वो उसमें फिजिकल बैरियर भी था ना, मेल फीमेल थे मैं कह रही हूँ उसको। ना, इंटरपर्सनल इसको कर दे लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिकल, उसके अंदर इमोशनल हर चीज कवर हो रही है ना। हाँ, और वो दूसरा वो विजिबल है सबको? डॉक्टर मुसलसल पेन से लिखी जा रही थी, पहले उसकी बात तो हाँ सुने ना। वो इंटरपर्सनल आ गया ना, कि दोनों में कोई कम्युनिकेशन में वो कोई गैप, यानी हर चीज थी। पेशेंस नहीं था, सुन नहीं रही थी, जैसे उसने कहा आपका समझना जरूरी नहीं, मेरा समझना हाँ जरूरी। हाँ हाँ। इस पे लिखना कैसे है? पता टाइप नहीं मुझे। करेंगे डॉक्टर बस कुरत मुझे इसमें कोई मैं भी टाइप टाइप कर रही हूँ। करेगा, आता जाएगा। मैंने व्हाइट जी बोर्ड खोला हुआ है। ठीक है, आप लोग बोले मैं क्या क्या लिखूं? चलिए ठीक आप है, लिखिए ठीक ना, है। एक तो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज बैरियर, वो जुबैदा वाली बात, मेडिकल जार्गन। मेडिकल जार्गन भी लिखे। जी दूसरा, हमें लग रहा था कि डॉक्टर पेशेंट को इंटरप्ट कर रहा था और उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहा था, इररेलेवेंट बात, सिम्टम्स और चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो हम लिखते हैं इंटरप्टिंग पेशेंट। इंटरपर्सनल उसके आगे फिर ये लिख दो। वो वाले वर्ड्स लिखते हैं ना डॉक्टर पाकिज़ा, जो वो कह रही थी कि लिसन वाली बात, कि क्या कहना चाहिए, इंटरपर्सनल लिखे, फिर वो कहेंगे इसको एक्सप्लेन करें। इंटरपर्सनल में पे यही है ना, कि वो अंडरस्टैंड नहीं करी अपने पेशेंट को। इंटरप्टिंग है। उसके बाद वो उसको, उसका जो असल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करी थी, इररेलेवेंट बात शुरू करी थी। फिर जब वो उठ के जा रहा था तो वो रूड जेस्चर दे रही थी हाथ इसमें लिखो से। एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड ऑफ फ्रेजेस, कि वो जो, हाँ, ठीक है, वो ये मेडिकल वर्ड्स जार्गन्स में आ जाता है ना?
हाँ, उसके आगे मेडिकल लिख देना एम्बिगिटी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि यानी उसमें काफी वर्ड्स थे ना। नहीं, वो उसके अलावा मेडिकल के अलावा भी उसकी बात नहीं सही सुन रही थी ना। जैसे वो कह रही थी कि आप बैठ जाएं, तो इसको इसमें एक्सप्लेन कर दे कि एम्बिगिटी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि मेरा समझना जरूरी है, आपका जरूरी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए। सारिया वो भी उस लिखो, रूट जेस्चर, वो जब उठ के गया था वो अच्छा, उसको इस तरह इशारे ये जो, कर रही थी। हाँ, जो आप कह रही ना डॉक्टर कुरतुलैन इशारे करी थी, ये इंटरपर्सनल में आ जाता है कि नेगेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है कम्युनिकेशन में, कि अगले को डिस्करेज करना कि वो ना बोले, इसमें आप लिख और दें बाय बॉडी पासिंग, लैंग्वेज। बाय पासिंग कर दें, कि बाय पासिंग में वो आ गया कि उसकी बात सुनी नहीं और अपनी बात शुरू कर दी। और पता है अथॉरिटेटिव भी थी, हाँ, कहती थी ना मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरी सुनो। taken over the whiteboard because I could feel it. नहीं नहीं, आप नहीं, गलती से मैं लिख एडिट छोड़ कर रही हूँ, दिया। मैं एडिट कर रही हूँ, आपने बस जो ठीक है, ठीक लिखे है। हैं। हाँ, और नहीं मुझे ठीक है, मुझे उससे वैसे ही हो रहा था कि अब्बू what is happening. I'm like लेकिन फिर रियलाइज हुआ ये कोई आप कह रहा है, ओके ग्रेट। आए देखें। बाय अच्छा, एक पासिंग भी लिख दें इसमें वर्ड, और वो भी लिखें कि बाय वो पास कर रही। बाईपास करी थी और वो बिजी थी, अपना काम किए जा रही थी ना, वो नॉट इंटरपर्सनल अटेंटिव। में ही आ गया ना। हाँ, हाँ, उसके आगे ब्रैकेट में ऐसा लिख देते ताकि वो क्लियर हो जाए किधर लिखा है इंटरपर्सनल। इस तरह लिख देना इंटरपर्सनल, बाय पासिंग, एम्बिग्युइटी ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस, मेडिकल जार्गन के आगे लिख दें। आप देखिए आई कांटेक्ट भी नहीं था, आपने देखा वो कैसे बात करी थी, उसको लेफ्ट साइड पे बिठाया हुआ था, देयर वाज नो आई कांटेक्ट। नो आई ये कांटेक्ट। फिजिकल में कर दो ना, फिजिकल के आगे लिख दो आई कांटेक्ट। किधर है फिजिकल? ये बैरियर्स खोलो ना, तो उसमें देखो फिजिकल है, फिजिकल के आगे लिखो आई कांटेक्ट, उनके वर्ड्स में आ गए। मेरे ख्याल में व्हाइट बोर्ड पे टाइप सारिया कर रही है ना इस वक्त। इस वक्त मैं कर रही हूँ, खदीजा कौन कर रहा है? नहीं, थोड़ा सा सारिया मैंने सारिया। किया, अब सारिया कर रही सारा है। कह रही है। इसमें फिजिकल में आप लिख दें आई कांटेक्ट, आगे फिजिकल के आगे लिख दें आई कांटेक्ट। फिजिकल आई कांटेक्ट और बिजी, अपीयर्ड बिजी अपने काम में ना। इसमें पेशेंट की कम्युनिकेशन हो सकती है कि वो एकदम से नहीं, वो तो गुस्से ठीक में आ गया कम्युनिकेट था। कर रहा था। नहीं नहीं, वो ठीक कम्युनिकेट कर रहा था। देखो पेशेंट ने बात ठीक की थी ना, और जब उसने कहा कि मैंने हाँ। आपकी सुननी ही नहीं, आपकी समझना जरूरी ही नहीं, मेरा समझ, तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, कि मेरा तो जरूरी ही नहीं समझना। लैग्ड एम्पैथी भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, लैकिंग एम्पैथी। यानी इसे पेशेंट तो इतना रॉन्ग नहीं लगा, यानी वो तो बेचारा अपनी तकलीफें ही बता रहा था, एंड में नाराज भी, बल्कि वो रूडली नहीं हुआ, वो कहते मैं जा रहा हूँ, वरना तो मरीज आपको बता देते जब आप उसे कहें। असली ओपीडी याद आ गया। हाँ, नहीं नहीं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, हम तो पंजाबी में बोल रहे होते। तो नहीं यही कह रही हूँ ना रुबैदा, कि हम मरीज बिजी बेहतर है इसी फिर तरह भी इतना होते नाराज हैं, नहीं हुआ। एक हाथ ऐसे से अगर हम फोन हो रहा जुबैदा होता करें है। ना तो नहीं, अब देख रहे हम एक हाथ से व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, फिर एक हाथ से किसी सीनियर को रिप्लाई कर रहे होते हैं, उधर से अपने फॉर्म्स भर रहे होते हैं। हम इसको कहते हैं छोटे छोटे आप लेटे, पहले हम मुआयना कर लेते फिर देखते, तो हम भी यही करते हैं ना। हम मरीज से एक्सक्यूज लेके कुछ करते, उसके बाद फिर उसको गेट बैक टू पेशेंट, और फिर हम उसके साथ टाइम देते हैं। हम यूं नहीं करते कि हाँ, उससे बात करें, साथ व्हाट्सएप देखें, हम उससे हैवी एक्सक्यूज ओपीडी की करके, बात करी ना। हाँ, तो लेकिन फिर हम उसके पास आ जाते हैं, तो पूरी दुनिया में हो रहा है कि आप उस टाइम पे हाँ, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर अच्छा, दिखा रहे थे थोड़ा उसके सा पास इतनी आप फाइलें थोड़ा पड़ी हुई थी। इसमें थोड़ा सा ना एनवायरमेंटल भी था। उसका जो डोर था वो मतलब उधर पीछे से खुल रहा है, और फिर वो उसके साइड पे आके बैठा है। फ्रंट से पेशेंट को आना चाहिए, फ्रंट पे बैठना चाहिए, हाँ, डायरेक्ट आई टू आई बहुत कांटेक्ट होना क्लोज था ना, चाहिए। यानी कि जेंडर में हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे इतना, यानी नहीं नहीं, आजकल तो एनवायरमेंटल बैरियर था ना एक, कि पेशेंट का वो जो सामने से आना चाहिए वो पीछे से आ रहा है और पीछे ही बैठ रहा है, और डॉक्टर का मुंह सामने की तरफ टाइप को है चेयर, इस तरह का एक कोई आई एनवायरमेंटल कांटेक्ट इस बैरियर। वजह से भी नहीं हो रहा ना, कि वो हाँ, उसको आई मुड़ के कांटेक्ट। देखना पड़ेगा। पेशेंट सिटिंग ठीक नहीं है डॉक्टर के साथ।
चलो आप व्हाइट बोर्ड कहीं से सेव तो नहीं करना? हाँ, क्योंकि मैं ये यही कह रही हूँ, पता चले जब मेन रूम में जाए तो व्हाइट बोर्ड इसका इमेज ले ले एक, डॉक्टर खतीजा को बताओ। ये ना ये बाद में। अच्छा, और एक और कि डॉक्टर ना वेल रिहर्स्ड और वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। उसी में सारा कुछ आ गया ना, इस वैदा ये जो सारे पॉइंट्स हैं। वो मेडिकल जार्गन नहीं यूज कर रही। यार कोई और स्क्रीनशॉट लेने दे नहीं रहा है। ये जी इसका कौन क्या हिला लेना रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड? नहीं स्लीडिंग और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने काफी सेफ हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। इस वक्त मेरे फोन So let's discuss it group by group. So anybody who wants to share their whatever you have discussed, you are welcome. Ma'am, we are group 1, and we discussed the video, and we had the following points that there was a language barrier. Medical jargon was used with ambiguous words and phrases, and the doctor was not addressing the patient's problem but talking about irrelevant issues. When the patient was leaving, she was giving rude gestures, and she appeared busy. She did not make eye contact with the patient. When the patient entered, patient sat on the side of the doctor. Ideally, the patient should enter from front and sit in front of the doctor. And Your anybody, words and she phrases lacked empathy. She lacked empathy. जी, the doctor was not well prepared and well rehearsed for his for her talk with the patient. Lack of communication में जो है उसके इंटरपर्सनल बहुत गैप था, लैंग्वेज She was बैरियर। not waiting for the response of the patient. अपनी बात करने के बाद उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रही थी। पेशेंट लगातार स्वेलिंग का कह रहा था, उन्होंने एग्जामिनेशन नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। मरीज को सिटिंग पोजीशन इन फ्रंट होनी चाहिए थी, साइड की बजाय वो साइड पे बैठा हुआ हाँ था। बिल्कुल वो साइड में बैठा पेशेंट था। अनॉयड हो रहा था, उसको अनायंस के बाद वो एम्पैथी शो नहीं कर रही थी उसकी डिजीज से रिलेटेड। जब उसने कहा मुझे पेन एंड स्वेलिंग है, पेशेंट से वो कोई पूछ नहीं रही थी कि कोई ट्रीटमेंट ले चुका नहीं ले चुका, कोई रिलीफ है नहीं है, ड्यूरेशन कब से है, कभी उसको कब से ये तकलीफ या परेशानी है, ये नहीं पूछा उन्होंने। और पेशेंट को मैडम कह रही हिस्ट्री थी टेकिंग तुम्हारा था ही समझना जरूरी नहीं, मेरा जरूरी है। हिस्ट्री टेकिंग नहीं थी एंड बिल्कुल। एटीट्यूड प्रॉब्लम तो था ही एंड पे ना। बिहेवियर प्रॉब्लम, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स थे। That's very well done, all of you. Okay, let me share more videos with you people, and we're going to discuss more videos. मैम ऑडिबल नहीं है ये। Not audible. Okay, let me share again. Can you hear it now? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे बाबा जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन नाम है बेटा। और कितनी उम्र है आपकी? बेटा 75 साल उम्र है। अच्छा, और क्या करते हैं आप? बेटा मैं आर्मी से रिटायर्ड। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं बेटा। अच्छा, तो
तो इतनी गर्मी में कैसे आना हुआ बाबा जी? बेटा बहुत मजबूरी से आया हूँ, बहुत ना तकलीफ होती है जब सुबह पखाना करते वक्त ना, वो बहुत जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब आपको कब्ज रहती है? जी जी जी, कब्ज रहती है। तो ये सब कितने हफ्तों से चल रहा है, मतलब कितने दिनों से, हफ्तों से, कितने टाइम से ये? बेटा तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। अच्छा, तो आपने कोई दवाई ली, किसी डॉक्टर को चेक करवाया? जी जी, मैं गया था वो हकीम के पास, उसने फक्की दी थी, वो ही खाता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब कैसा, अब क्या होता है, मतलब डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं है मुझे। दर्द होती है? दर्द तो नहीं होती, लेकिन खून आता है खाने में से। हाँ जी। ठीक है, तो ये कितने दिनों से हो रहा है आपके साथ? ये तकरीबन मैं बता चुका हूँ वैसे, खून आने का सिलसिला कितने दिनों से हो रहा है? वो साथ ही आ गया था, लाइक 3 हफ्ते। अच्छा, मतलब इतने अरसे से ये सब चल रहा है? जी जी। ठीक है बाबा जी, और कोई मसला इसके अलावा? नहीं बेटा जी, बस यही है कि बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, असल में बाबा जी आपकी बात सुन के जो मुझे पता चला है कि आपको पाइल्स है, मतलब बवासीर है, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ और एक टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप वो करवा लें। 1 हफ्ते के लिए दवाई खाएं और टेस्ट करवाएं और उसकी रिपोर्ट ला के मुझे दिखाएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से ऐसा हो जाता है, और हो सकता है कि आपके टेस्ट में जब हम देखें तो उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत हो या फिर दवाइयों से ही ठीक हो जाए। तो ये कोई इतनी खतरनाक बात नहीं होती, लेकिन आपने बस ये कोशिश करनी है कि अपनी खुराक सही रखनी है और पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अपने आप को बस कब्ज़ नहीं होने देनी है आपने, ठीक है? और ये टेस्ट करवा के आपने मेरे पास दोबारा ज़रूर आना है। और कोई और मसला, आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो? बहुत शुक्रिया बेटा जी, सब कुछ समझ आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। Okay, I'll send you guys back in the breakout rooms and you'll discuss this. And at this time, when you're discussing, please make sure that you are talking about the linguistic aspects here. That what are the language? What is the language that they are using? What aspects of language that is facilitating their talk? Okay, you can join the rooms. उन्होंने कहा इस वीडियो पे अब लैंग्वेज के एस्पेक्ट डिस्कस करने। अच्छा, इसमें ना देयर इज नो सिमेंटिक बैरियर, कोई उसने मेडिकल जार्गन नहीं यूज किया, कि जो मेडिकल जार्गन यूज करते ना इसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, तो देयर वाज नो सिमेंटिक बैरियर। ये जो उसको बाबा जी कह के बात ये करी थी, ठीक है, हाँ मैं भी यही कह रिस्पेक्टेडली रही हूँ बात कि कर रही है ना। करी थी उसकी, उसका जिस एनवायरनमेंट से वो बिलोंग करता है उसमें तो ये सही चीज। वर्ड ठीक है, 75 इयर्स एज थी ना, अगर 50-60 भी होती और फिर ये वर्ड यूज किया होता तो ठीक है, 75 देयर हाँ, वाज जैसे वो उसे नाम से बुलाती तो अच्छा ना लगता ना। हाँ, there was no semantic barrier, there was no emotional barrier, psychological barrier. अच्छा, मुझे ये उसकी ना चेयर रोटेशन पे बहुत इख्तलाफ था, हर मुझे भी सेकंड इरिटेशन हो रही थी कि वो इतनी चेयर इरिटेट हो रहा था बंदा उस एनवायरनमेंट से ना, हर सेकंड बाद वो लिखती थी, हर यानी डॉक्टर जो है थोड़ा सा बैठ के कोई 1-2 मिनट बात सुनता है, यानी वो कोई आपने एग्जाम तो नहीं देना कि एक एक लफ्ज लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा मुझे ये बहुत इरिटेट तुम्हें नहीं कर रहा था, मूव कर रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा कर रहा था। हाँ, लेकिन ये लैंग्वेज में तो नहीं आएगा ना, उन्होंने कहा सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज। तो हम ये का कह कहा सकते है हैं ना। कि वो उसके लेवल पे जाके बात कर रही थी, कि उसको जो लैंग्वेज समझ आएगी वो हाँ उसके अच्छी, वो हाँ यूज हाँ कर हाँ, रही थी। बेसिकली इट वाज अ गुड वीडियो इन दैट सेंस, मतलब ये नेगेटिव नहीं था इसमें। हाँ पॉजिटिव हाँ, देखिए, पेशेंट देखिए नेगेटिव सेटिस्फाइड हाँ था, वो कह थैंक यू सकते कह हैं। कर बिल्कुल। गया है। हाँ हाँ तो इसमें सब चीजें हम उसको मार्क्स देते हैं कि लैंग्वेज जो थी उसमें बैरियर नहीं था, और उसकी एम्पैथी टोन भी थी ना उसमें, सॉफ्टनेस उसकी थी, टोन भी अथॉरिटेटिव नहीं थी। मेडिकल जार्गन नहीं थे। उसने एंड पे उससे पूछा कि आपको अगर कोई और मसला है तो बताएं, मतलब ये कि सब पॉजिटिव पॉइंट है, देयर वाज नो नेगेटिव पॉइंट। और उसकी ना डॉक्टर की टोन भी अच्छी थी, अच्छी जैसे थी। पिछले वाले में वो
जरा डांट के करी थी, इसमें वो उसकी टोन भी अच्छी थी और छोटी छोटी बात कर रही थी ना, बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बोल रही थी, रीअश्योरिंग वर्ड्स बोल रही थी। उसमें ये हाँ भी बता रही थी कि मेडिकल भी और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, बट साथ हाँ, रीअश्योरेंस दे रही थी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि वो हाँ, रीअश्योरिंग वर्ड्स बोल रही थी ना, बिल्कुल। रीअश्योरिंग वर्ड्स बोल रही थी और ट्रीटमेंट पूरा एक्सप्लेन कर रही थी ना, इसमें आगे तक उसने सर्जरी तक बात बता दी। सारिया लिखो ना। कोई भी नहीं लिखा। मैं लिख Reassuring words, addressed patient properly. There was no medical jargon. No medical jargon. Empathy थी उसकी लैंग्वेज में. Empathy थी, उसकी टोन अच्छी थी. Understandable थी. बाबा जी समझ रहे थे. और स्मॉल, जैसे हमने कहा था कि स्मॉल सेंटेंसेस बोल रही थी. हाँ, बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बोल रही थी, समझ ही आना भूल ही जाए। अलावा ठीक है मेरे ख्याल में ये. इसकी पिक्चर ले लें। हाँ, इसका लैंग्वेज का भी करना है ना कि ये लैंग्वेज का नहीं किया हमने, इसमें लैंग्वेज तो किया है सारिया. नहीं, मैं ये वो सारे लैंग्वेज वाले हैं ना. अंडरस्टूड बाय द पेशेंट. हाँ सही है. इसमें ख्याल में यही था. यस. चले मेन रूम में. ठहरे, कुछ और पॉइंट भी अगर याद आ जाए तो कर लेंगे. जब तक टाइम है अवेल कर लेते. मेन रूम में तो वो खुद ही बुलाती हैं, आराम से बुलाती हैं, आपने अगर नहीं आप जाना। लीव कर देंगे रूम तो आप जा सकते हैं. अच्छा, यस. कोई नहीं, यहीं बैठते हमें हैं इतनी आराम जल्दी से. क्या है जाने की। ये अच्छा रूम है, क्लोज्ड ग्रुप, या अच्छी डिस्कशन हो रही है. अब सुबह सुबह उठ ही गए तो फिर अब. संडे को वो भी। हाँ, वो भी संडे को. आप लोग फ्राइडे वाला दिन कैसे मैनेज करते हैं? बस इसी तरह, फ्राइडे को कॉलेज में बस या इसी तरह, हॉस्पिटल? जहां होता भी है? बैठे हो वहां पे हाँ. अपना नेट यूज करके साथ साथ. डॉक्टर खदीजा कुछ अगर और लिखना जैसे है? हमने तो मेरे ख्याल में बहुत हो, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें हो गए हैं. कोई नेगेटिव बात नहीं है इसमें, मतलब हमारा ये फोकस है, उन्होंने कोई नेगेटिव लिंग्विस्टिक पे चीज ढूंढो फोकस ना। किया वो हुआ था चेयर ना, वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसलिए. आप लैंग्वेज पे फोकस रखें. हाँ, सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करना ऐसे है ना कर दूं? हाँ यूं कर दें, हाँ यूं कर दें, ये सही है. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ कि बस हम्म. और क्या पॉइंट हो सकता है लैंग्वेज में? और क्या आता है? यानी आज कितने सेशन है? ये है, फिर अगला है। आज एडमिट सर जुनैद का भी है. आज है 1 2 3 4 4 सेशन है और 5वां सर जुनैद है. हमें असेसमेंट वो असाइनमेंट के बारे असाइनमेंट के बारे में कुछ पता नहीं। वो जो 2000 वर्ड्स किया। ढाई 2500 जी. और कुसिया ने कल ठीक है कि रोज 4 लाइनें लिखना शुरू कर। सही कह रही है. गलत नहीं कह रही, सही बात कह रही। हाँ, खास तौर पे हम लोगों को ना, मतलब जब साथ साथ बिल्ट हो रहा है नॉलेज, साथ साथ ही बंदा. दूसरी बात ये है कि इकट्ठे लिखने के लिए फिर टाइम कैसे निकालेंगे? छुट्टी तो वही नहीं ना. मिलनी। डॉक्टर को कभी छुट्टी नहीं मिलती.
आज एक तो केंजा की है ना, जो हमारे कॉलेज की है ना। अभी एक डॉक्टर सैयद हसन शुएब की है डॉक्टर आयशा के बाद इवैल्यूएटिंग आज लंबी ब्रेक नहीं है ना कोई। नहीं, आज क्योंकि ब्रेक नहीं है लंबी। मैंने सर आलमशेर मलिक के कुछ सेशंस ना वैसे लिए हुए, वो काफी लंबे लेते हैं, अच्छा। तो उनका पढ़ाते वैसे बहुत भी अच्छा 3 है। आवर्स का है। हाँ, उनका होना था। वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लंबा होता है उनका। इनकी इंटरेक्शन थोड़ी सी कम होती है। हाँ, इंटरेक्शन कम होती है, लेकिन डिपेंड करता है वो कैसे, अगर इतना छोटा ग्रुप होगा ना शायद बेटर हो। वो जिस ग्रुप में करते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ये जो हमने सेकंड लास्ट लाइन लिखी थी, यूज द लैंग्वेज दैट वाज अंडरस्टूड बाय द पेशेंट, इसको लिखें क्लियर स्पीच। क्लियर स्पीच। क्लियर स्पीच के अलावा ये जुमला ठीक था कि पेशेंट वाली लैंग्वेज यूज करी थी। नहीं, क्लियर ये स्पीच जो इसके हमने अलावा सेकंड लिखी लास्ट जा बहुत सकती लंबा है। सा लिखा है ना, यूज द लैंग्वेज दैट वाज अंडरस्टूड बाय दिस पेशेंट, इसको कहते हैं क्लियर स्पीच। ठीक है, उसमें क्लैरिटी थी, इट वाज अंडरस्टूड बाय द पेशेंट, क्लैरिटी इन स्पीच ये लिख दें, बेटर वर्ड हो जाएगा। मैम क्लियर कन्वर्सेशन, क्लियर क्लियर कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर कन्वर्सेशन। जी जी। अब जब वापस ग्रुप में जाएंगे तो किसने बोलना है? अभी मैं से बोल डिसाइड। दूंगी। हाँ, बस फौरन से फिर आपने बता देना है, ठीक है? ओके, चले जाए मेन ग्रुप में। अभी कुछ और, अगर जब तक वो नहीं कहते तो कुछ और याद आ जाए। So सोचें। should I stop this? Are you all guys done? हाँ यस जी। मैम। Yes. So I'm waiting for others to join the main room. In the meantime, just keep in mind that all these notes that you're taking, just keep them recorded with you guys, because in the end we are going to be talking about all these aspects together. Um, and you will be sharing your ideas. So this time, as people were grouped in the same group or not? Like the participants in one group were the same as in the previous Yes. time or not? जी मैडम Yes. सेम। यस Okay, Yes, that's ma'am, that's same. great. Okay, fine. जी मैम। So would you like to share your opinions about that? What were your मैम आई एम observations फ्रॉम in ग्रुप this? 1. The page doctor is using a reassuring words. She is addressing the patient properly with use of small sentences. The language was understood by the patient. That's clear conversation. Soft tone है, empathy है, no medical jargon है. पेशेंट को वो सुन रही है और पेशेंट को वो सेटिस्फाई करने की यानी अच्छी कोशिश कर रही है, जिसमें उसको थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट भी एक्सप्लेन कर रही है टिल सर्जिकल ट्रीटमेंट, बट आर रीअश्योरिंग वर्ड्स और पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव वर्ड्स दे रही है और अंडरस्टैंड पेशेंट कर रहा है, एंड पेशेंट एट द एंड पेशेंट इज थैंकफुल टू हर. तो ठीक था. That's very थोड़ा well सा मुझे done. एनवायरमेंटल है, लैंग्वेज में इतना हमें प्रॉब्लम नहीं लगा. एनवायरमेंटल हमने डिस्कस नहीं करने, उसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम लगा था कि You कॉन्स्टेंटली can रोटेट कर रही थी अपनी start चेयर, तो your उसमें right. Okay. So what नहीं, was the थोड़े environmental इंग्लिश के problem? वर्ड यूज किए थे उसने, जैसे वाटर इनटेक, ठीक है, कि Mm-hmm. पानी ज्यादा पीने की बजाय वाटर इनटेक कहा ना. Right. And group number 2, would you like to share your opinions? मैम यही था कि थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड उन्होंने यूज किए थे, लेकिन कम थे, और बार बार वो पेशेंट को बाबा जी कह रही थी, जो कि बेसिकली बायोएथिक्स के अगेंस्ट है, कि वो रिलेशनशिप उनसे लैंग्वेज हाँ करनी. वो नहीं यूज करनी चाहिए.
उनको आप कह के बुला सकती थी। और दूसरा एटीट्यूड उनका अच्छा था, आई कांटेक्ट भी था, एम्पैथी भी शो कर रही थी, उनकी अप्रोच अच्छी थी, इसलिए एंड पे जो है वो पेशेंट सेटिस्फाइड था उनके ट्रीटमेंट से, और पेशेंट को वो प्रॉपरली उन्होंने टाइम भी दिया। मैम ये सारी थी जो हमारे ग्रुप में डिस्कस हुई। वेरी कम्युनिकेशन ट्रू जी। ग्रुप नंबर 3। जी मैम, आई एम डॉक्टर सलमान। मैडम हमने जो डिस्कस किया है उसमें कि You muted, Salman. अनम्यूट किया था मैंने, म्यूट हो गया। कैन यू हियर मी? Yes, we can hear you. जी मैम, हमने मैडम जो डिस्कस किया है वो ऑलमोस्ट सेम ही है कि द डॉक्टर वाज पोलाइट, एम्पैथिक एंड शी वाज लिसनिंग टू द पेशेंट प्रॉपरली। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको गाइड भी किया कि आपको ये जो आपको अलामात आ रही हैं ये इस वजह से। बीच में उन्होंने थोड़ी सी इंग्लिश वर्ड यूज किए लेकिन साथ ट्रांसलेट भी कर दिया। एक आधी जगह पे उन्होंने जिस तरह वाटर इनटेक कहा था या प्रोसीजर या ये इसमें एक एक जगह पे किया था, एक जगह पे नहीं किया, तो इस तरह थोड़ा सा हो जाता है। दूसरा उन्होंने ऑपरेशन को भी प्रोसीजर का उन्होंने सर्जिकल कहा कहा कि ना। हाँ जी, वो अक्सर निकल जाता है मुंह से हमारे, तो वो हम इन्होंने इसमें वीडियो में ही दिखाया कि उर्दू में उसको एक दो जगह पे ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने पूछा प्रोसीजर के बारे में जब बताया तो उन्होंने कहा कि ये दवाई से भी ठीक हो जाएगा या हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन 2-3 सेंटेंसेस में और एक्सप्लेन कर सकते थे कि दवाई हम इस तरह देते हैं, उसमें सॉफ्टनिंग हम करते हैं स्टूल की, या अगर ना हो फिर हम प्रोसीजर पे जाते हैं, ऑपरेशन जो भी हमारा सर्जिकल होता है या जो भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन वो थोड़ा सा अगर गाइड कर देती तो इसमें थोड़ा सा पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाता है कि मैं पहले दवाई खा के देखूंगा। वो ठीक थी उनकी चीज, लेकिन इसमें थोड़ा सा और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा 1-2-3 सेंटेंसेस में उनको बता देना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। और बाकी बाकी सब कुछ ठीक था और पेशेंट वाज सेटिस्फाइड। और मूवमेंट जिस तरह वो कह रहे हैं लोग कि थोड़ी सी चेयर मूवमेंट कर रही थी, तो वो बहुत ज्यादा अगर होना फिर करता है, फिर जरा इरिटेट होता है पेशेंट। लेकिन फिर हमें जरा पेशेंट की पोजीशन की वजह से थी, वो कम्युनिकेशन के लिए कर रही थी ना। हाँ जी, बार बार लेकिन मूवमेंट ओवरऑल करती तो इसको अगर कम्युनिकेट नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल्स पे गए तो 9/10 वाज माय ओपिनियन, ठीक थी। That's wonderful, all of you, for giving all these insights. Did you notice one thing in this video? That in the beginning of the consultation, there was static talk used there. Did you notice that? सॉरी मैम, मैडम आपकी ग्रीटिंग आवाज थी, नहीं समझी। Yes, static talk. बायलैटरल ग्रीटिंग थी, दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया था। Bilkul. So it was initial greetings followed by a little bit of static talk, like asking about the weather or asking about his lifestyle questions they were asked by the doctor. So these are really facilitating devices as well. That if you are trying to break the ice between yourself and the patient, like making that patient comfortable, so that's a good strategy. And मैडम in ये our जो culture, we एक normally do that. पॉइंट, We are starting our activities. जी शाहीन। मैडम काइंडली ये जो पॉइंट था बाबा जी वाला, ये हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि वो 75 इयर्स ओल्ड थे। अगर हम बायो एथिक्स के लिहाज से उनका नाम लें तो हमारे कल्चर नाम में नहीं ये लेना अच्छा होता, नहीं आप कहना लगता। होता है डॉक्टर मुबादा। नाम नहीं रिस्पेक्टेबल, लेना आपने, आंटी अच्छा जी, बीबी जी, नाम नहीं लेना आपने। आप कहना है ना कि Well, आपका क्या कहना है। you people are giving लेकिन right. हमें जिस तरह हम जिस तरह I agree करते थे with Shaheen चाचा as जी well. या हम्म, अंकल आंटी इस तरह नहीं कहना, लेकिन अगर हम ये चाचा जी या बाबा जी कहते हैं तो वो तो अलाउ इस तरह है ना, जिस तरह हमें हाउस नहीं, में आइडली बताते नहीं थे या कहना चाहिए हॉस्पिटल डॉक्टर साइड सलमान, पे। आइडली नहीं हाँ जी, कहना चाहिए, अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं आइडली कहना चाहिए। हाँ जी, वो सिर्फ आप आप लोग क्या क्लिनिकल कहते वाले, हैं, हम लोग फिर आपसे अंकल या चाचा जी में क्या फर्क है, या आंटी या अम्मा जी में क्या फर्क है? सारे रिलेशनशिप्स हैं, वो नहीं यूज करने हैं। these are think these are cultural ठीक है, words, and ओके। when I was doing my research, this PhD research, and I came across different experiences of people and perceptions.
they said the same thing, calling people with words such as Baba ji, Chacha, ya Amma ji. These are facilitating devices actually, because sometimes the patient, it depends on, again, Dr. Rihana, you're very much right about it, कि हम आपका word use करें, ठीक है, और इसकी बजाय कि हम उनको बाबा जी या अंकल या चाचा कहें. लेकिन the thing is, it depends on the audience again. The whole thing is about understanding your patient, कि वो जो आपका पेशेंट है वो किस चीज से कंफर्टेबल होगा, और हमें फौरन पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो किस चीज से कंफर्टेबल होगा, और हमें उसकी कल्चरल एस्पेक्ट्स भी समझ आ जाते हैं जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं. तो ये वर्ड्स जिस तरह हैं बाबा जी, चाचा जी, ये फैसिलिटेटिंग डिवाइसेस ही हैं मेरे ख्याल से. इट्स नॉट जस्ट मेरा ख्याल, बिकॉज जैसे जब मैडम मैंने अपनी अगर रिसर्च की एक थी. जी 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 सर, आप कह रहे थे कुछ? जी मैम बताएं. नहीं, मैं मैं इसी में ऐड ऑन सिर्फ ये करना कह चाह रही रहा था हूँ मैम कि जी जी, बोले बोले. कि जिस तरह अगर कोई पेशेंट अपने फादर को लेके आता है, तो उसमें जब वो कहते हैं कि आप इनसे बात कर ले या इनसे पूछ लें, तो वो उनको फिर मैं अक्सर सर भी कह देता हूँ. जी सर, आपकी उम्र कितनी है सर, इस तरह वो डिपेंड करता है ना कि सर पेशेंट रिलेशनशिप में नहीं जिस तरह आप आता कह रही डॉक्टर कल्चर साहब. बैकग्राउंड. सर तो हाँ जी, ठीक है ना, नहीं आपकी बात रिलेशनशिप में ठीक है, नहीं आता. आपकी बात ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ. ये हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा. वही है कि डिपेंड करता है कि आगे हमारे सामने कौन बैठा है, कौन पेशेंट है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है. और जब मैंने अपनी रिसर्च भी की थी, मैं बाबा ये बता रही थी कि उसमें भी जो डॉक्टर्स के परसेप्शंस भी थे और नर्सेस के भी और पेशेंट्स के भी. उन्होंने यही कहा था कि जी जब ये डॉक्टर्स यूज करते हैं इस तरह के वर्ड सच एज बाबा जी, चाचा जी, तो उनको एक एफिलिएशन थोड़ी सी शो होती है, और these are nice words to use. तो चलें. तो फैटिक टॉक का किन किन लोगों ने नोट की इसके अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर? Do you think fatigue talk is a good way of starting the consultation? That is not going into the medical talk directly, but using live world talk as well. That's really important. Or do you think it's a waste of time? इससे थोड़ी हेल्प होगी डॉक्टर आयशा, पेशेंट के साथ थोड़ा पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा आप उससे थोड़ी सी डिजीज के अलावा थोड़ा सा इस तरह से बात करो, तो वो तो अच्छी थी जो वो करी थी. बिल्कुल बिल्कुल. So anybody who thinks that it's a waste of time, that we because we as doctors, we have very little time, and we are really very much conscious about the fact that नहीं, there are so नॉट many. वेस्ट ऑफ टाइम. Okay, this पेशेंट is का not waste of कंफर्टेबल time. होना जरूरी है, अदरवाइज वो अपनी बीमारी पूरी तरह बताएगा नहीं. So let's move on to another video. I'm going to show another one to you guys. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर साहिबा, वेट करें थोड़ी देर. Can you hear it now? आवाज आ रही है ना? हाँ जी. Okay. जी बीबी, क्या मसला है? ये यहीं बैठे रहेंगे? आपको कोई मसला है? नहीं, वो मेरा मसला थोड़ा पर्सनल है. तो कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर ही हैं, बोलें बोलें क्या मसला है? मुझे पीरियड्स में थोड़ा मसला है. अच्छा, क्या नाम है आपका? मेमूना. मेमूना?
मैं मुना। अच्छा मैमूना, मैमूना आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। शादी होगी आपकी? जी। इसमें घबराने की क्या बात है? मेरे को पिछले साल मेरे शौहर की डेथ हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अच्छा ऐसा करें, आप उधर लेते हैं, मैं आपका एग्जामिनेशन करती हूँ। थोड़ा सा बंद कर। ठीक है, आपकी हिस्टेरेक्टमी होगी। वो क्या है? आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। ये कुछ टेस्ट मैं आपको लिख के देंगे। वीडियो पॉज हो गई है मैम।
I think we lost Dr. Ayesha, and let me get back to you. I'll just talk to her. हाँ जी, ओके। वीडियो अभी आधी हुई थी, मुझे तो उस डॉक्टर पे गुस्सा आने लग गया था, वीडियो बंद हो गई। बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। हाँ, अच्छी थी। मुझे लगता है स्पेशल मैडम ने खुद बनवाई है ना? हाँ जी, वो स्टूडेंट से बनवाई है। हाँ, अमतुल थी, गाइड से रेहान इसी- थे और रिजवान था, वो वाले बच्चे थे, बहुत अच्छी कर रहे थे। ये मैम का ना डेल्फी था, आई थिंक इन्होंने अपनी पीएचडी के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट किया था। ओह ये अच्छा। आई थिंक ये वही है उनका, ये डेल्फी प्रोजेक्ट था पूरा, डेल्फी बेस्ड था। तो बहुत अच्छी थी वो। आ गई है मैम आयशा। Hey guys, I'm sorry I got disconnected again and I was trying to come back. Okay, let me share the screen again with you guys. I think you people were not able to watch the whole video, right? हाँ जी, पूरी नहीं देखी। चले मैं दिखा वहां तक देखी थी मैडम जहाँ इसको। वो उनको एग्जामिनेशन कर गई थी। चले ठीक है मैम। सर सलमान बाकी भी बताएं। मैंने कहा वीडियो इतनी अच्छी थी, मुझे तो गुस्सा आने लग गया था डॉक्टर। अच्छा, एक not real videos and this was assigned जी मैम, as a project. जो है ना, हेल्थ के प्रोफेशनल्स को मैंने ये टास्क दिया हुआ था, तो डोंट जी गेट मैम, वी offended by अंडरस्टैंड। all these because I don't think that doctors are that irrational. मुझे पता है कि इतने ज्यादा नहीं मैम, वो वैसे मजाक से क्रूअल भी नहीं होते the way they are I do understand कि इन्होंने बच्चों ने जो बनाई है ये वीडियोस, हालांकि वो खुद भी डॉक्टर्स थे और उन्होंने फिर भी इस तरह की वीडियोस बना के मुझे दी थी, तो आई हैड टू रिलाई ऑन ऑल दिस डेटा। नहीं मैम, ये चले बहुत अच्छी लेट्स जिस तरह हम लोग मैडम थर्ड ये ईयर में सही बनवाते हैं वीडियोस रोल हैं। प्लेस, तो आप बहुत अच्छा ये बनाते हैं बच्चे। आप हैवी ओपीडी वाले टर्शरी केयर चले जाएं, इससे बुरे बुरे सिनेरियो आपको मिलेंगे। अच्छा अच्छा, मैंने असल में उनको यही कहा था कि आप लोगों ने वीडियोस बनानी जिसके अंदर आपको बैरियर्स इन कम्युनिकेशन को मद्देनजर रख के, या जो फैसिलिटेटिंग डिवाइसेस हैं, वो फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर्स हैं, वो आप यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो फिर मुझे ये उन्होंने वीडियोस बना के दी थी। दिस इज पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट, द लार्जर प्रोजेक्ट जी दैट आई मैम, ये डिड। बहुत तो बच्चे मैंने भी कहा बहुत कि अच्छे आपको बनाते हैं। शेयर करूंगी। बहुत अच्छी हैं। हमने सीएमएच में बनवाई थी अपने थर्ड ईयर फोरेंसिक से रिलेटेड, पुलिस टॉर्चर ये इंजरीज और लॉ सीएमएच से में रिलेटेड, बनी तो है। बच्चों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। हाँ जी, बड़े अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने ये सीएमएच के ही बच्चे हैं जो भी आप लोग देख रहे हो। तो जी जी बल्कि डॉक्टर अक्सर को शायद पहचान भी जाएं, आप लोगों में से कुछ लोग पहचान भी जाएं इन बच्चों को। मैडम हमें इन सब जी, के ये थोड़ा नाम बहुत तो आइडिया पता है। हो रहा है। अच्छा 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 इन्होंने बड़ी मेहनत की थी, कोई बहुत अच्छी। हाँ जी, 3 हफ्ते लगा के हम लोगों ने, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगा के ना, तो ये हम लोगों ने काम किया था। फिर जो डॉक्टर जेनेट स्टीवंस के साथ मिल के फिर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया था। तो मैं आपको ये बाकी भी दिखाती हूँ इसका। जी, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इसमें पैक और अल्ट्रासाउंड यहाँ से टेस्ट है। स्टार्ट करूँ या कहाँ से? इज दैट ऑल राइट या पीछे करूँ? मैडम यहाँ से ठीक है। चले ये आप करा लें और फिर मुझे दिखाएं। कुछ तो इधर से ही हो जाएगी, कुछ आपको बाहर से कराना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं इस सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? देखिए बीबी, ये तो बच्चे पैदा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और अगर इसमें मेरी जान चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यकीन खाने किस वजह से होते हैं? पर डॉक्टर साहिबा, लेकिन कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि सारा टाइम आप पे लगाऊं, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं। और सुने, वो फी दे के जाएगा, नर्स कह रही थी आपने फी नहीं दी। कहाँ आना है, कहाँ एडमिट होना है, इतने टाइम में मैं सब कुछ कैसे करूंगी? बीबी, ये आपका मसला है, मैंने जो आपको बता दिया वो करें। जाए अभी। पर डॉक्टर साहिबा, अरे बीबी, यहाँ तमाशा ना लगाएं, चले उठे जाएं। अल्लाह हाफिज।
ओके, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और भी मैं आपको दिखाऊंगी, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू अदर थिंग्स। ठीक है, गोइंग टू Dr. Raksa, can you please make me host here, because I can't see breakout rooms. Dr. Raksa, are you there? ma'am. Yes, yes. Sorry, Aap, was it fine? okay. Yes, I can see breakout rooms now. Sharon ji, please join the rooms. लारेब, आप कौन से रूम में थी पहले, और सादिया आप कौन से रूम में थी? मैम मैं रूम मैम रूम 2। रूम 2, अच्छा। और सादिया, व्हाट अबाउट यू? मैम आप मेरा पूछे या सारिया या सादिया? इट्स सादिया गफर लिखा हुआ है, गफार। तो हाँ उनका गफार, नहीं, सॉरी। उनका नहीं पता। सादिया गफार, आप कौन से रूम में थी? प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही ये जुल्म की दास्तान थी। सही बात है। उसकी ना प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब होती, साथ में मेल बैठा हुआ था और हर उससे चीज वो है, उसका प्राइवेसी, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, लैक ऑफ एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल नहीं एवरीथिंग किया। एवरीथिंग ऑल पेशेंस, काइंड ऑफ बैरियर। यानी लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ एम्पैथी, रूड। वो तो उसका मजाक उड़ा रही थी, और उसके, हाँ जी, बिल्कुल कोई यानी आप एम्पैथी ये नहीं कह थी। सकते हैं कि शी इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू द पेशेंट। हाँ जी, उसमें फिर ये सारा कुछ आ जाएगा कि वो मजाक उड़ा रही थी, यानी शी इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू द पेशेंट। इसका पीएमसी कॉन्फिस्केट कर ले, ये क्यों कह देते स्टूडेंट हैं। के पीछे पड़ रही? हाँ, ये बात थी। ठीक है, ऑल तो दी ये बैरियर्स, ऑल दी बैरियर। ठीक है। अब लैक ऑफ प्रिवेसी इमोशनल थी, इवन उसने बैरियर। एग्जामिनेशन के लिए भी उसको कहा इधर उधर चले, एग्जामिन कर देती हूँ, और वो उससे इतने प्राइवेट क्वेश्चन पूछ रही है, वो भी एक और बंदे की प्रेजेंस में, मेल की प्रेजेंस, तो उसे प्राइवेसी अनकंफर्टेबल मेंटेन, कर रही है। अच्छा, हमने एनवायरमेंटल बैरियर पहले था। पहले 2 केसेस की सेव कर लिए थे ना स्क्रीनशॉट्स? हाँ जी, कर लिए, वो शेयर कर लेते हैं। हाँ, और अब ये तीसरे वाले का भी लिख के मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर रही हूँ। सबको विजिबल है? नहीं, एक सेकेंड, लेट मी सी। मैं कर दूं? मेरे पास जो एक सेकेंड जो खुल रहा है वो ऑलरेडी उस पर बना हुआ है। डू यू वांट टू just show access to the board after the meeting? Collaborate. Open. Okay, नजर आ रहा है? यस, अभी खुल रहा है। मम्मा आज मैंने उसको हलीम, स्पेगेटी और सालन आपकी खाया। यहाँ तक आवाज आ रही है जब आप मेन्यू बनवा रहे हैं। डॉक्टर पाकिजा के घर आज स्पैगेटी और हलीम बन रही है बच्चों। सॉरी अभी हाँ, चले लिखे सारिया। भूख नहीं था। मैं चले, अब इसमें हमने ये सोचा था कि वो पेशेंट को उसने अनकंफर्टेबल किया, लैक ऑफ प्राइवेसी थी, रूड थी, लिखते जाएं। मेड पेशेंट अनकंफर्टेबल, सारिया इसको लिख रही हम थी कंफर्टेबल। बैरियर्स की शेप में लिख लेते ना कि एनवायरमेंटल बैरियर था, हाँ, एनवायरमेंटल बैरियर था, इंटरपर्सनल था, लैंग्वेज बैरियर था, सारा ऐसे लिख लेते हैं ना। लैक ऑफ फिर एम्पैथी वाली एक्सप्लेन करते, वो इंटरपर्सनल बैरियर हो गया, सिमेंटिक बैरियर था। नहीं, आज इमरान को बुलवाया है, इसलिए बनवा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वही मैं सोची थी आप क्यों इतना खाना बनवा रही हैं। इसलिए आज उसको मैंने कहा अल्लाह लगा के आया आज। लैक ऑफ एम्पैथी, एनवायरमेंटल बैरियर, और हमने कहा था डिसरिस्पेक्टफुल थी, और मेडिकल जार्गन यूज करती, पेशेंट के ऊपर हंस रही थी। पेशेंट की प्राइवेसी की कोई सिमेंटिक रिस्पेक्ट नहीं थी, बैरियर, उसको इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं थी।
Or she was laughing at the patient. Emotional barrier. बैरियर ही बैरियर है सब। हाँ, emotional barrier. कहती यतीम खाने है ना वो पल्ला। Language बहुत misbehave. barrier था। I think ये उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, यतीम खाने हैं कि नहीं, वो मुझे जब हुआ था कि बच्चों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना तो नहीं कहते डॉक्टर। नहीं इससे बुरा कह रहे होते। हमने तो पता नहीं क्या क्या सुना हुआ है। ये तो फिर बहुत अच्छा डॉक्टर था। मैडम हम लेडी विलिंगटन में बहुत कुछ सुनते थे। हाँ, ऐसी बातें हो रही होती कि बंदा कहता है खुद भी ये प्रोफेशन ही छोड़ दो। हम खुद बेहोश हो जाते थे। सही। Semantic तो खाली barrier सुना ज्यादा रही थी ना, बच्चों ने परफॉर्म ओवर भी कर कर दिया। देती। सही सही। अच्छा, made patient uncomfortable, rude, environmental barrier, laugh. semantic barrier, SEMANTIC. ये semantic barrier क्या है जुबैदा? Semantic हर दफा आप ये वर्ड बोलती हो। medical jargon. मैं भी ये medical जानना चाहती jargon हूँ। use कर रही है ना। हाँ, मैंने medical कहा था कोई jargon जुबैदा ने कोई use कर बैरियर रही है, आइडेंटिफाई किया, ठीक मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जार्गन के भी यही स्पेलिंग होते Semantic हैं? का मतलब वर्ड से यूज किए GARGO। में गए बोला था ना, ओके। स्टेक्टमी भी बोला था आपने, पता Jargon। नहीं एक दो और लफ्ज। डॉक्टर खदीजा क्या बोल के चली जाती हैं? असल में गला इतना खराब है कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही। आती हैं यूं करती हैं फिर चली जाती हैं, पता नहीं क्या करती मेरे कहने का मतलब था हिस्टेक्टमी वगैरह ना यूज किया था लफ्ज, और एक दो और थे वो यूज किए। डिफिकल्ट टर्म्स है ना, नॉन अंडरस्टैंडेबल। उसकी इकोनॉमिक पोजीशन और सोशल उसके प्रॉब्लम्स को कंसिडर किए बगैर उसे ट्रीटमेंट एडवाइस करी किसी थी। चीज को भी नहीं रिस्पेक्ट किया ना उसके इमोशंस को, ना उसकी इकोनॉमी को, ना सिंपल उसको। बदतमीज डॉक्टर है। हाँ, वही तो कह रही, इसका PMC ले लें। वाह वाह, हमारे बस में होता हमने ले लिया होता। सही बात है। मैडम हमसे भी बहुत पहले फिर किसी ने ले लिया होना था। सर सही कह रहे हैं। अच्छा मैडम, सिमेंटिक्स का आपने कहा है, सिमेंटिक्स होता है एक ही वर्ड्स के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग्स लिए जाते हैं, इसको बेसिकली हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। जैसे इफ यू कैन रिमेम्बर वो पीके मूवी में जब वो बंद होता है ना, उसमें अच्छा वाला एग्जैक्टली, सो वर्ड रिमेन्स द सेम बट इट कन्वेज द डिफरेंट मीनिंग। जैसे आपने कोई बहुत अच्छी बात करनी हो तो हम कहते हैं और नो, हालांकि वो यस होती है। सिमेंटिक बैरियर की डेफिनेशन गूगल दे रहा है, ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन दैट डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ अ मैसेज सेंड। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे एक ही वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, इसको सिमेंटिक्स बोलते हैं। जी, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लिया है किसी ने? नहीं लिया तो मैंने ले लिया, कोई बात। Ji, so would you like to share what you have observed here in this video? In group 1, please, starting from group 1. Ma'am, she made the patient uncomfortable. She was rude. There were environmental barriers. She lacked empathy. She was disrespectful. There was language barrier as well as emotional barrier. She was using medical jargon and difficult terms that were not understood by the patient. Wonderful. That's great.
Group 2. Ma'am, first I had not asked about patient's background. They were misbehaving, mocking, and laughing at the patient. Lack of privacy, not listening to patient's concern, using medical terminologies. There was no empathy, no eye contact. The environment was not comfortable for the patient. The doctor seems to be more concerned about money than patient's health. I really like this answer. Can you elaborate on the importance of asking background? Why it is important that we need to ask background from the patient? मैम ताकि जानने के लिए कि Socio-economic पेशेंट जो है बेसिकली बहुत पुअर फैमिली से लग रही थी और मतलब थोड़ी डरी हुई भी अपनी कंडीशन के बारे में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड का पूछना चाहिए था ताकि पता लग सके कि उसकी क्या कंसर्न है। जिस तरह बीच में आके उसने बताया कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, तो थोड़ा सा वो स्टार्ट में पूछ लेती तो वो बेटर पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सकती थी और उसकी ट्रीटमेंट कंडीशन ऑप्शंस In और this ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी उसके ट्रीटमेंट सोशियो ऑप्शंस इकोनॉमिक स्टेटस यस के मैम हिसाब श्योर से बताएं। in this regard, जी what जी strategy could be right? So, in this regard, if we follow a structure like in our consultation, if we follow a structure such as greeting the patient, making use of Kartik talk, then coming from lifeful talk to medical talk, if we make use of this kind of structure and then taking the history of the patient and then moving on to diagnosis or whatever you have to say about the patient, and in the end, if you are going to end the conversation, the consultation, how are you going to end this consultation? So this is really very important. It has to be all structured. So you see, even if we are speaking in spontaneous situations such as these, it has to be, if we think about a structure before we start speaking, what will happen? It will make things easier for us, right? So but you just talked about lack privacy. What does that mean? In this particular context, what was मैम बेसिकली हमारे यहाँ जो कल्चर है कि मेल पेशेंट को नहीं दिखाना। where did you feel सॉरी मैम आपकी आवाज कट हो रही है। मैंने पेशेंट ने क्योंकि कहा था कि डॉक्टर की तरफ देख के जो मेल डॉक्टर बैठा था, तो उसने अपना कंसर्न शो किया था कि कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं अगर एक या दो लोग बैठे हो, इवन फीमेल भी हो या मेल भी हो, तो वो अपनी कोई चीज डिस्कस करते हुए जरा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो तो मेल सामने डॉक्टर बैठा था, इन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि इसका देख के कि मैं बता दूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए, डॉक्टर है। तो वो चाहे डॉक्टर भी हो, लेकिन हमें पेशेंट की प्राइवेसी, उसकी कंसर्न्स को देखना चाहिए। exactly? That's true. And do you think the way she broke the news, that was appropriate as well? When she broke the news about her hysterectomy, was that okay? No, ma'am. नो मैम। नहीं, So प्रॉपरली how नहीं should बताया उसको। she have placed it? Like, didn't she have to prepare the patient to listen to this bad news? पेशेंट वैसे भी उसको मैंने यंग थी पहले ना। बताना चाहिए था कि जब You as a doctor, you पेशेंट as वैसे भी doctor, what यंग would थी। you do in this situation? पेशेंट वैसे भी यंग थी ना, विडो थी, उसने कहा 2 बच्चे हैं, तो फर्टिलिटी इशू Hmm. होते हैं ऐसे मरीजों के ना, उनके लिए तो स्टेक्टमी यूं नहीं एडवाइस की जा सकती। तो आपने अदर ऑप्शन सारी अवेलेबल बतानी है, देन आपने कहना है ना, इसका मैडम मतलब ये इसमें एक सारी ऑप्शंस बताएंगे और जैसे ब्रेकिंग द बैड न्यूज के पैटर्न को फॉलो करेंगे अगर हम उसे हिस्टेक्टमी Exactly. एडवाइस भी करना चाह रहे थे। कैंसर बिल्कुल से बिल्कुल काम में तो यही मैं स्टेक्टमी एडवाइस नहीं होती, या कोई ऐसी डिजीज जो बिल्कुल ही वो पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट टाइम तो स्टेक्टमी नहीं हो जाएगी, इसलिए मिसमैनेजमेंट थी वो एक्चुअली।
So the thing जी is बिल्कुल, कि उसने even प्रॉपरली चेक किए बगैर ही उसको even if पहला स्टेप ही हिस्टेक्टमी का कह दिया था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट है एक्चुअली, बैड न्यूज नहीं है ये, मिसमैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन उसको जिस तरह डॉक्टर से आयशा, may I add something? जी सर। मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली दिस clip which has been shown is regarding the communication of the patient. This is not a professional sort of guidance or say in the background of gynecological examination or management. Basically, we have to see what type of errors we perform in communication skills. So इसको इस perspective में अगर देखा जाए, that will be more appropriate rather than management aspects and all that. वो तो हम उसमें भी डील कर सकते हैं जब कोई प्रोफेशनल बात होगी, या नेचुरली वो हमसे बहुत बेहतर गायनी वाली जानती हैं, माशाल्लाह हमारे साथ मैडम जो तशरीफ फरमा है। वी आर फोकस्ड primarily on how she should have behaved with the patient who comes for this. So this ये फर्स्ट स्टेप ही उसका गलत है डॉक्टर का। जी जी, तो ये हमें देखने की जरूरत है। और जिस तरह वो डॉक्टर बैठा हुआ था, वो सिटिंग, और उसमें उसने स्लीपर वगैरह भी उतारे हुए थे, दैट इज मोर जिसे कहना चाहिए कि डिस्गस्टिंग फॉर द पेशेंट रादर देन in our normal setups. Now the male doctors are also in central induction, they are in gynae, and they are all had that doctor introduced first कि ये डॉक्टर हम हमारे हैं और ये हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो things would have been much more better communicated. और फिर वो अपनी सारी बात भी कर सकती है, वो एग्जामिन भी फिर उसमें शामिल हो सकते हैं, और not necessarily कि फिर उनको she can take her to the bay for examination and then come back and let him know the person, male person who is part and parcel of that team, उसको बता सकती है कि उसमें ये फाइंडिंग है। सो ये इसका बेसिकली वी शुड कीप फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल इन स्किल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत अच्छा दिखाया गया, जिसने भी बनाया है, इट वाज रियली कि देखे ना, कुछ को गुस्सा आना शुरू हो गया, कुछ ने कहा ये कर लो वो कर लो। सो वेरी गुड परफॉर्मेंस, थैंक यू। Thank you, sir, for your insights, valuable insights. Thank you so much. And yes, we are talking about communication skills here, and how important role communication plays in this medical consultation. Ji, Dr. Khizar, you were saying something? You want to say something? मैम ये सर नदीम ने बहुत अच्छी बात की है कि डॉक्टर को इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था। इनमें से किसी वीडियो में डॉक्टर ने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया, वो तो सेकंड पर्सन था, उसका भी नहीं कराया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर उस डॉक्टर का इंट्रोडक्शन करा देते तो द थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट, सिचुएशन वुड हैव चेंज्ड कि जी ये हमारे सीनियर डॉक्टर हैं या जूनियर डॉक्टर व्हाटएवर, तो वो उस तरह से चीजें जो है बेहतर हैंडल हो जाती। लेकिन हाँ जी, वो एक तो अब्रप्ट सारा का सारा अब्रप्ट कंसल्टेशन थी, और जिस तरह से ब्रेक की गई न्यूज which was very much dis for the patient, the way she started crying and all, and the way जो हमारी डॉक्टर साहिबा थी वो भी बिल्कुल impartial थी इस बारे में, so that shouldn't be like that. जी डॉक्टर फिजा, you wanted to say something? आपका हाथ रेज हुआ है सर। मेरे ख्याल से गलती से हो गया। अच्छा ठीक, ग्रुप नंबर 3, can you please talk about your observations? What did you observe? Group 3. Yes, sir. विजिबल स्क्रीन में? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैम बेसिकली यही जो भी डिस्कशन सारी हुई है वही थी हमारी ऑब्जर्वेशन भी, कि इंट्रोडक्शन जो था स्टार्ट में वो उसका प्रॉपर नहीं था, कि उसने अपना इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पेशेंट के साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ प्रॉपर। फिर उसको हैंड गेस्चर से कहा कि बैठे इधर, और वो 2 बार उसको गुस्से में कहा कि इधर बैठे, वो बैठ गई। उसके बाद कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, एम्पैथिक टोन नहीं थी। और फिर उसने पेशेंट ने जब कहा कि मैं कुछ अपना हिस्ट्री देना चाहती हूँ, उसने डॉक्टर की तरफ देखा
दूसरा जो मेल डॉक्टर बैठा था उसका एटीट्यूड भी ठीक नहीं था जिस तरह वो बैठा हुआ था। तो जिस तरह सर नदीम ने कहा कि अगर वो इंट्रोडक्शन करा देती कि ये डॉक्टर साहब है हमारे और वो प्रॉपरली बैठा होता तो ये हमारी टीम का हिस्सा है, तो वो शायद वो इस तरह इतराज ना करती। लेकिन अक्सर जो हम पेशेंट आते हैं अगर वो कहते हैं कि हम इनके सामने नहीं बताना चाहते या कोई भी ऐसी बात हो तो उसको हमें रिस्पेक्ट डॉक्टर करना साहब चाहिए। लाग ही नहीं रहे थे ना, पेशेंट को भी इसीलिए ऑब्जेक्शन लग रहा था, उसकी प्रोफेशनल लुक ही नहीं। बिल्कुल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह हम स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास थर्ड ईयर में, तो हम उनको जब स्टार्ट होता है यही कहते हैं कि अब आप डॉक्टर हैं, आपने ओवरऑल पहन के स्टेथ लगा के जब हॉस्पिटल जाना है तो पेशेंट को यही लगना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं। वो यही समझते हैं कि आप डॉक्टर हैं, उनको नहीं पता आप स्टूडेंट हैं। तो यू शुड बिहेव लाइक अ डॉक्टर, और वहां जाके ऐसे हंसना नहीं है, आपस में कानों में बातें नहीं करनी, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, उनको मॉक कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इसीलिए उनको ये बताना पड़ा, ये कंफ्यूजन भी होती है फिर डॉक्टर इसके साहब अंदर। है ना, उसको जी बताना मैम, पड़ा था बिल्कुल ये डॉक्टर साहब है, हाँ। बिल्कुल। तो ये वो हमारी लाग टीचिंग नहीं में ये रहा हम था। भी साथ सिखाते हैं उनको, The बच्चों को। do you think the attire is really very important in सॉरी communicating मैम। things to? I'm asking, you think attire, the medical professional's attire, his the way he's dressed up? जी बिल्कुल, ये हम सिखाते हैं Yes. मैम इनको जी कि यू बिल्कुल। शुड ड्रेस प्रॉपरली, और अगर ओवरऑल ना भी पहना हो तो आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए प्रॉपर कि अगला बंदा आपको एक अब जिस तरह वो चप्पल पहन के बैठा हुआ था, चप्पल के तो मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि चप्पल पहन के आप क्लास में आ रहे हैं, लैब में बिल्कुल। जा रहे हैं, तो ये तो कोई बल्कि इसमें सारे यही कहते होंगे। तो So अटायर Dr. इज नंबर Salman, 1। उसके बाद अगर Dr. आप Salman, बैठने का could स्टाइल you भी please नहीं ठीक। elaborate on this word, proper dressing? प्रॉपर ड्रेसिंग मैडम, जब हम हॉस्पिटल या अपने अगर हम एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो जिस तरह सीएमएच में भी इन्होंने ड्रेस कोड एक बनाया हुआ है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं तो आपके प्रॉपरली आपके डेस्कटॉप होना चाहिए, आपके बाल ठीक बने होने चाहिए, आपके शूज प्रॉपर क्लोज शूज होने चाहिए। तो बेशक जॉगर हो, बेशक जॉगर भी ये मना करते हैं, लेकिन बेशक अगर पहने हुए हैं तो एक प्रॉपरली प्रेजेंटेबल बंदा होना चाहिए। अब यहाँ पे वाइवा देने अक्सर बच्चे आ जाते हैं, चप्पल पहने होते हैं मैडम, जीन्स पहन के चप्पल पहन के, और जीन्स भी वो रगड़ जो होती है। तो मैं अक्सर डांट देता हूँ उनको कि बेटा ये वाइवा देने का तरीका तो नहीं है, अगर आपने जीन्स पहननी भी है डिसेंट जीन्स पहन लो, चलो वैसे हर बच्चे का अपना होता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं हॉस्पिटल सेटिंग में एज ए स्टूडेंट, तो उनको हम यही कहते हैं कि आपने प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, प्रॉपरली आपका ओवरऑल और विद स्टेथोस्कोप आपके हाथ में हो, ताकि जो आपको पेशेंट देख रहा है वो आप उसको तो यही पता है ना कि एक डॉक्टर आ रहा है मेरे से बात करने, हिस्ट्री लेने। उनको नहीं पता कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता कि आप कौन से लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप डॉक्टर ही हैं। तो यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ प्रॉपर डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर। उनसे हिस्ट्री लेनी है आपने, उनसे आपने थर्ड ईयर में इनका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, तो हम ये साथ साथ इनको गाइड करते हैं। तो ड्रेसिंग एंड डॉक्टर प्रॉपर मान में अटायर इज बात वेरी हुई, इंपॉर्टेंट। बेसिकली अगर आप जी जी बहुत मैम। सीनियर डॉक्टर भी हैं तो लुक तो एक पहली चीज है ना, अगर आपकी लुक ही प्रोफेशनल बिल्कुल मैम, नहीं है, ये तो थर्ड या बिल्कुल फोर्थ को छोड़ बिल्कुल। देना। क्या ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए, ये बात हर लेवल पे ही है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खत्म है मरीज पे, हाँ अगर जी, आपका वे लेकिन ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पीकिंग है। मैडम थर्ड ईयर में इनका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है ना डॉक्टर्स हाँ पेशेंट्स के साथ, थर्ड ईयर हाँ एमबीबीएस में, तो इसलिए हम साथ साथ गाइड करना शुरू करते हैं यहाँ से इनको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखें ये हमें हमें बच्चों को बहुत शुरू से बताना है, जब वो मेडिकल प्रोफेशनल बन रहे हैं, अभी बिल्कुल, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं फर्स्ट आए, ईयर से ही लेकिन बताना चाहिए। स्टिल जी बिल्कुल शुरू से इसलिए बताना चाहिए क्योंकि इट विल बिकम पार्ट ऑफ देयर हैबिट्स, यू नो। द थिंग इज दैट अगर उनकी हैबिट्स डेवलप नहीं होंगी शुरू से, तो वो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल उसी तरह से डील करेंगे जो उन्होंने सीखा है पहले। तो इट्स रियली वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैम, कि उनको शुरू से बताया जाए सारी चीजें, और ये आपके बहुत अटायर, आपकी इंपॉर्टेंट बॉडी चीज है लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन। जी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करी हैं पेशेंट को। इवन हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, क्लेanलीनेस जो वहां पर है, या फिर आपके अपने जो जेस्चर्स कम्युनिकेटिंग समथिंग और अदर टू द पेशेंट, और उस वो डिपेंड करता है कि कितना वो कंप्लायंट होगा पेशेंट आपके जेस्चर से, बिल्कुल आपकी मैम। बॉडी लैंग्वेज से, आपके अटायर से, आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक जो आप दे रहे हैं, उससे वो इवन पेशेंट मैडम की आपकी आई मूवमेंट कंप्लायंस। जो है, आपकी आई कांटेक्ट, मैं अपने एक बिल्कुल। एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, चाहे वो बहुत बड़ा नाम है, चाहे बहुत बड़ी फीस लेते हैं, तो नाम नहीं मैं लूंगा किसी का, अगर मैं उनके पास जाता हूँ और एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ और वो प्रॉपरली मेरे आई कांटेक्ट ही नहीं करता मेरे साथ, मैं उसको हिस्ट्री बता रहा हूँ कोई अपनी बड़ी जरूरी, और वो कागज पे लिख रहा है या कोई और अपना काम कर रहा है, तो ये मुझे इंसल्टिंग फील होगा और मैं समझूंगा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी हिस्ट्री सुनने में। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हो चुका है और मैंने इस तरह फील किया है। तो ये चीज बड़ी गाइड मैटर करती है।
कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पेशेंट के साथ कांटेक्ट कैसे है, ये नोट करते हैं पेशेंट्स भी ऐसे में। बिल्कुल पेश करते हैं। अच्छा, as we are talking about the experiences, and I'll be asking you people to talk about your experiences as doctors and as patients as well, because you might have gone to different hospitals as patients as well. So ये हम अभी ये वाली एक्टिविटी करेंगे इसके बाद. But the thing is, let me start with my own experience, that why I began this whole project, why I became interested in medical communication, and it was really very personal thing. और जिसने मुझे मूव कर दिया कि मुझे ये चीज़ को ज़रूर पढ़ना है, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना है. And it was like in 2010 when my mother, she had developed brain tumor. She was a medical doctor, प्रोफेसर थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, और इस्लामाबाद में होती थी. ठीक है. तो वहाँ पे जब हम लोगों ने उनको चेकअप करवाया, तो पहली चीज़ तो जो न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी से, हालाँकि हम लोग लिटरेट, वी वर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, एंड सारे पढ़े लिखे लोग, सारे डॉक्टर्स और इसके अलावा मतलब उनको पता था कि अच्छे लोग मतलब अच्छे से आए हैं। फिर भी इसके बावजूद द वे दे इंटरैक्टेड विद अस वाज़ रियली पैथेटिक, कि जी आपके पास बहुत कम टाइम है, आप लोग देर कर रहे हैं, आप फौरन ऑपरेशन कराएं. तो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द न्यूरोसर्जन. और इसके अलावा ही वाज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग दैट माय फादर वाज ट्राइंग टू टेल, और वी वर ट्राइंग टू टेल टू दैट डॉक्टर. खैर ऑपरेशन हो गया, और वो भी गलत ऑपरेशन हुआ, जिसमें हुआ ये कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर था उसको बिनाइन ट्यूमर के तौर पे ट्रीट किया गया. और फिर इसके बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरी परसेप्शन ये थी कि मैं अपनी अम्मी के साथ मेडिकल उसमें न्यूरो सर्जरी वार्ड में थी. ठीक है. और वहाँ पे मुझे ये था कि चलो आज ऑपरेशन हुआ है, कि कल या परसों अम्मी को हम लोग घर ले जाएंगे. अच्छा, उसमें मैंने जो ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसमें ये हुआ कि 99% patients would come to neurosurgical wards, they would expire. And it was mostly because of the it was जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही थी. कि हम लोग पिम्स में थे उस वक्त, और पिम्स में हो ये रहा था कि मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे थे वो पठान या फिर अफगानी पेशेंट्स थे, और डॉक्टर्स वर हैविंग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज. और वो जाके कोई चीज़ बताना चाहते थे डॉक्टर को, तो डॉक्टर कहते थे अक्सर कि हमें बात समझ नहीं आ रही, आप वेट करें. तो मैं मुसलसल तकरीबन आप सोचें कि 2 दिन से आगे होते 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 पूरा महीना गुजर गया उस वार्ड के अंदर. और ना मेरी अम्मी की हालत ठीक हो रही थी, और मैं हर रोज़ ये चीज़ें देख रही, कि ऑब्जर्व करी कि किस तरह से कम्युनिकेशन बैरियर्स वहाँ पर हैं, और किस तरह से प्रॉब्लम होती है. और इवन अगर जो है सर्जिकल इंटरवेंशन ठीक थी, और सर्जिकली प्रॉब्लम नहीं हुई, और पेशेंट को शिफ्ट कर दिया गया, इट वाज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, मिसकम्युनिकेशन में भी, जिसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर होते देखा मैंने. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट जो कि बहुत यंग थी, और उसको अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, और उसको क्या किया गया कि नर्स ने आके उसको कहा कि बीबी यहाँ से उठो, मैंने जो है ना चादर बदल ली. अब वो लड़की को ऑपरेशन 1 दिन पहले हुआ था, ब्रेन सर्जरी हुई है. ठीक है. वो उसका ऑपरेशन कामयाब भी था, वो उठ के खड़ी हो गई है. एंड द मोमेंट शी स्टूड अप, ऑब्वियसली शी फेल डाउन. ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेन ऑपरेशन हुआ. अब वो उसकी वजह से हुआ ये कि उसके ब्रेन में पानी भर गया. अगले दिन उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई जो आप लोग लगाते हो, टेंट्स वगैरह लगाते हैं, वो लगाने पड़े. बहुत पुअर फैमिली से थे वो लोग, और विदिन 2 days शी एक्सपायर्ड. सो दिस वाज मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से जो है क्या हुआ, मेडिकल एरर हुआ. ठीक है ना. उसकी वजह से पेशेंट की लाइफ जो थी वो
वो है ना in terms of कि जी fatal life incidents था ना ये खैर इस तरह के मैंने बहुत सारे problems मैंने वहाँ पे I kept on watching these kind of things, I kept on observing things, and I thought about using all these observations in my PhD thesis जो मैंने ये किया है डॉक्टर नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन के ऊपर. So I would like you people to talk about right now about your experiences as doctors, as medical professionals, as well as patients. कि आप लोग क्या problems face करते हैं when you are interacting with your patients? Obviously, they are coming from different backgrounds, diverse backgrounds. तो आप लोगों को क्या problems face होते हैं? Let's can I divide you people in pairs in breakout rooms so you can interact with each other, and we can come back to the main room later on, and we can share our experiences as doctors. You can think before you share with each other. Okay, you will have some time to talk to each other regarding this. So let me divide you people. So we have how many participants here? 13 participants. I'm going to make 5 rooms. Recreate. Let me recreate that. So I'm creating 5 rooms for you or 6 rooms for you. 6 rooms. Okay. So first think about the problems, the barriers, as well as facilitators. Apart from whatever you watched in the videos, just think about your perceptions, your experiences. I'm opening these rooms. Okay, Dr. Saria, I think आपका partner यहाँ पे कोई नहीं है. So please, can you please join another room? I'm going to Dr. Saria, are you there? जी 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 आप ऐसे कीजिए कोई और रूम ज्वाइन कर लें, यहाँ मैं पे कर कोई भी लेती नहीं है. हूँ. ओके.
डॉक्टर सारिया टास्क क्या है? मैम टास्क ये है कि हमने बताना है कि हमने अपनी प्रैक्टिस में कभी कोई बैरियर्स अगर कोई फील किए हैं या एक्सपीरियंस किए हैं तो एज अ पेशेंट भी और एज अ डॉक्टर भी। Ji, please continue your discussion. I'm waiting for you to discuss this. You've got to share your perceptions. More so, you need to discuss your experiences, अपने good experiences or bad experiences regarding medical consultation. वो share कर लें, या जो आप समझते हैं कि there are some barriers in communication which you have come across, या जो आपको लगता है कि facilitating devices, what are those linguistic facilitating devices that you use as a medical professional, वो आपने डिस्कस करने हैं यहाँ पर। तो प्लीज कैरी ऑन। क्या? हेलो जी जी। हाँ, मैं कह रही मेरा तो अपनी मदर का पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनका सीए ब्रेस्ट था ना, तो अभी हर कोई कहता है चोखा खानम ले जाएं, चोखा खानम ले जाएं। तो वहां पहले तो ओपीडी में बैठ बैठ बैठ, चलो वो बंदा कहता है रश है, ये है वो है। उसके बाद जिस 4-5 कमरों में वो मूव करते हैं, और एक कमरे पे बाहर डॉक्टर का नाम नहीं डिस्प्ले हुआ होता था, ना डिग्रीज। जरा हम तो खुद डॉक्टर है ना, कंसल्टेंट, हमें तो आइडिया होता है कि किसी का लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या है, बाहर क्या डिग्रीज लगी हुई है। सब ब्लाइंड नेम्स है उनके ओपीडी में, तो कहीं भी कुछ नहीं। और उसके बाद जब आप अंदर जाते हो, आपको उनकी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि क्वालिफाइड नहीं है, सिंपल एमबीबीएस है। जबकि लोग बेचारे इतने परेशान और इस हाल में वहां जाते हैं, और किसी को कंसर्न नहीं था सिवाय इसके चारों कमरों में उन्होंने फोन में रोटेट किया, पैसे 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 पैसे। मतलब सुबह गई मैं 7 बजे, उन्होंने 7 AM पे बुलाते हैं, और 4 बजे मैं डिसअपॉइंट होके वहां से आई। मेरा अपना अपने फादर का है, एफएमएच का एंडोस्कोपी का था। तो उन्होंने, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि गाइड नहीं किया हुआ था प्रॉपर। सही। मेरा खुद भी था, मेरी मदर के लिए लास्ट ईयर की ही बात है, कोविड हो गया था उनको। तो हम इधर ही लेके गई, वो सर ने खड़े होके भी नहीं देखा, ना स्टेट लगाई छाती को, ना कुछ, डायरेक्ट टाइफाइड लिख दिया। एक पेशेंट 2 घंटे 105 फीवर में वेट कर रहा है, और 2 दिन से वो 6 आवरली प्रोवैस लगाने के बावजूद सेटल नहीं हो रहा, विद एजोमैक्स, विद आईवी एंटीबायोटिक। तो डेफिनेटली उसको कंसर्न होनी चाहिए थी, लेकिन he didn't stand up, he didn't check, he didn't examine। लेकिन ये है कि जहाँ कोई एक बुरा एक्सपीरियंस था, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक मसीहा भी बन के एक डॉक्टर मिले। वो हमें एफएमएच में मिले, सर खुरम सलीम। ही देन उन्होंने इमीडिएटली पिक कर लिया कि स्टॉप हो रही है, फीवर इसलिए सेटल नहीं हो रहा, कि आईसीयू केस था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमीडिएटली पे शिफ्ट किया एंड शी गॉट बेटर।
दूसरा एक केस ये था कि मेरे अब्बू को एडमिट कराया तो रिपोर्ट्स का ये उसने देख के कहा था कि ले जाए, नहीं कुछ नहीं होना, ले जाए। यानी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे या ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट फादर को नहीं है, कुछ नहीं? ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म तो इस तरह तो नहीं ना कहते। ना। खैर, मिस आयशा इधर ही है हमारे साथ या हम तीनों रहते हैं ग्रुप में नहीं हम बात मेन स्क्रीन पे हैं, हम ब्रेकआउट रूम में हमारा गए ही नहीं। हमारा अपना ब्रेकआउट रूम है ना, वैसे सब वापस आ गए। हम आप लोगों के रूम में वापस आ गए। जी। हम मेन रूम में थे, हॉल में। आज डॉक्टर है। हाँ जी, वो हमने तो रेहाना ये डिस्कस किया है कि ऐसा हम क्योंकि जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने कोई पर्सनल कांटेक्ट या रेफरेंस से जाते हैं, तो लेस लाइकली होता है कि हमें जरा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, सिवाय इसके कि जब डॉक्टर ओवरवर्कड होता है या उसकी बहुत अपॉइंटमेंट्स होती हैं या उसको कहीं नहीं, ये बात ठीक है ना आपकी कि एज अ डॉक्टर हालांकि हमें काम फेस करना पड़ता है, फिर अगर हम भी फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बिग इशू है, क्योंकि एज अ हाँ। डॉक्टर हम भी कर रहे हैं ना। हालांकि हम्म। हमें तो नहीं, हमारे साथ तो उनका वे ऑफ टॉकिंग सारा कुछ ही और होता है। मैंने बता रही थी ना आपको, याद है जब मम्मी को ओपीडी में लेके गई हूँ शौकत खाना, तो वो हाँ। 7 बजे गई और दोपहर 3-4 बजे तक छुट्टी लेके गई थी सीएमएच से। तो कोई नहीं कि भाई, वो उन्होंने बता रही ना, कोई प्रॉपर डेजिग्नेशन कमरों के बाहर लगे हुए कोई थी नहीं, नेम प्लेट्स ही नहीं रखी हुई उन्होंने, ऐसे सिंपल एमबीबीएस बिठाए हुए उन्होंने, सिर्फ पैसों के अलावा कोई बात नहीं करनी कि क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रोग्नोसिस है, 1% भी नहीं। अच्छा हाँ जी देख आपने लो। क्या कराना है, हमारे तो इतने पैसे लगेंगे, इतने अगर आप ये कराएंगे तो इतने, अगर आप ये कराएंगे तो इतने, कोई पैसों के अलावा उन्होंने। हालांकि मैं बड़ी तारीफें सुन के गई थी, शोर मचा रहता है 24 घंटे। हाँ देखो ठंड जरा। में मैंने लोगों से पूछा होगा, नहीं लिंगर ऑन भी करेंगे ना, तो बैड हम्म। एक्सपीरियंस होते हैं ना वो, फिर आप परेशान बहुत हो उस टाइम, और इस तरह के एक्सपीरियंसेस बाद में खैर गुड भी था, जाहिर है फिर मैंने बाकी मानदा तो अमेठी में ही कराया ना, तो वहां तो बेहतरीन था सारा कुछ, वैसे जानने वाले थे। तो ये बात हुई ना, क्योंकि डॉक्टर मोस्टली अपने जानने वालों के पास जाते हैं तो उनका पर्सनल बैड होता है, जाहिर है जब नहीं जानने वालों के पास जाएंगे फिर उनको समझ आएगी व्हाट इज बैड हाँ, के मरीजों के साथ कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है, ये बात सही है बिल्कुल। कि जब ना जाने वालों के पास जाओ ना, फिर पता चलता है पेशेंट बेचारा कैसे सफर करता है, या बिल्कुल। अटेंडेंट लेकिन उन्हें उससे जैसे नहीं ही पता। पता चलता है आप डॉक्टर हैं तो वो अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं कि वो इसको तो पता होगा। हाँ नहीं अब यही इतना नहीं है, हाँ ये बात है। अब ये ऐसा नहीं है कि उन्हें पता चले कि डॉक्टर्स हैं। आप तो नहीं नहीं, मैं आपको कोई लिहाज नहीं, जिसको आप नहीं है कोई उसको नहीं है। लिहाज नहीं है, आप उन्हें क्या, आप डॉक्टर हैं, आप एक्सपेक्ट ये नहीं करेंगे कि वो आपको फीस छोड़ दे, आप ये जरूर चाहेंगे कि थोड़ा सा वो आपको एक प्रोफेशनल आपको वो दे, रिस्पेक्ट दे। लेकिन बिल्कुल भी नहीं है वो इस तरह। बहुत कंसल्टेंट्स ऐसे हैं, वो आपको ऐसे ही डील करते हैं कि आप मरीज हैं और डॉक्टर और आप, कोई डिफरेंस नहीं। उससे ही कह रही रेहाना, कोई रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो खत्म ही हो चुका है, वो तो सोसाइटी में ही खत्म हो गया, सोसाइटी में खत्म हो चुका। लेकिन पर्सनली डॉक्टर पाकिज़ा हमारे पास अगर हमारी जैसे कोई खुली आ जाती है, हम तो फिर जरा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं ना कि ये तो हमारी कोलीग है, तो पता नहीं मेरे ख्याल में पर्सनल पर्सनल भी एस्पेक्ट्स हैं, अगर वेरी हम करती है अगर ना हम चीजें, एनालाइज यही नहीं तो कर सकते। प्रॉब्लम है, वेरी करती है ना चीजें, इसीलिए तो बैड एंड गुड एक्सपीरियंसेस बहुत है। चीजें वेरी करती है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बिल्कुल। मुझे लगता है जो डॉक्टर की पूरे दिन में उसके साथ गुजरी होती है ना, वो भी तो इंसान है ना, उसकी जो स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्टेट, घर के मसाइल, ये वो, इसकी वजह से उसके एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। जो पब्लिक डॉक्टर का सेक्टर में तो एटीट्यूड ठीक होता है ना, उसकी चीजें वो फिर थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा सा आहिस्ता भी लेके चले, पेशेंट ठीक ही रहता है। नहीं, पब्लिक सेक्टर में तो ये प्रॉब्लम ही बहुत बड़ा है ना, जिना में मैंने काम किया वहां तो प्रॉब्लम इतना है कि रश ही इतना है कि आप कहेंगे वर्कलोड बहुत ज्यादा है ना। हाँ अगर बहुत आपने कोई ज्यादा है। मरीज देख रहे हैं तो आप कैसे टाइम देंगे, आप कैसे उससे हाँ मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल। काउंसल करना, कम्युनिकेट करना ही नहीं है। मैं जिनाब में हाँ। देखी थी, हम सिजेरियन करते थे, हम उस ऑफिसर को कहते थे खुद जाहिर है सर्जरी करनी है, क्रिटिकल मरीज मैनेज करने हैं, जो सबसे बेचारा जूनियर होता था उसे कम्युनिकेशन पे लगाया होता था, जब बीटीएल का कॉन्सेंट लेके आ, जब तो लगा,
जब तो बच्चा सीरियस है, मतलब जिस बेचारे को भी समझ ही कोई नहीं, क्योंकि बाकी काम सारे जो है ना वो चुके नहीं कर सकता था, सर्जरी नहीं कर सकता, पेशेंट असेस नहीं कर सकता, और 4 लोगों ने सब कुछ ही करना है। तो हाउस ऑफिसर को उस काम पे लगाया हुआ था जो उसकी कैपेसिटी में ही नहीं आता, जो उसके लेवल का ही नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था कम्युनिकेशन। हाँ, जो उसके लेवल का ही नहीं था ना। तो इस वजह से बेशुमार आपको ड्यूटियां ऐसे साइन करनी पड़ती हैं लोग ना होने की वजह से, जो उनको एक्चुअली परफॉर्म करनी नहीं चाहिए। कि जाहिर है सीनियर्स कम है ड्यूटी पे, जूनियर ज्यादा है, उनको उन्हीं सिचुएशंस के साथ टैकल करना पड़ता है। अच्छा तो देखिए, जैसे वर्कलोड जैसे रहा ना, क्लिनिक पे आप बैठे होते हो, ठीक है, आपके पास एक टेबल है, एक कुर्सी है, आप उस पे बैठ के मरीज एक देख रहे हो। गवर्नमेंट सेक्टर में मसला इसलिए भी होता है कि एक टेबल है, उसके गिर्द 8 कुर्सियां, 8 पे डॉक्टर बैठे हैं, सबके आगे एक एक मरीज है। कई दफा डॉक्टर के पास टेबल भी नहीं है लिखने के लिए। तो ये भी तो बड़ा अनोइंग बात होती है ना, बंदा इरिटेट ही होता है, डॉक्टर भी इरिटेट ही होगा, और फिर वो जाहिर है कैसे अच्छा कम्युनिकेट करेगा। नहीं, वहाँ कुर्सी टेबल के मामला नहीं है डॉक्टर, नहीं वहाँ कुर्सी टेबल के तो मामला ही नहीं। आप टेबल उठा के जाए ना, तो वहाँ एक जैसे बना हुआ है, समझ लें कि वो थड़ा टाइप कह लें, जैसे मुसाफिर नहीं बैठते तो उसी पे उसके आगे टेबल लगा लिए हुए थी कि भाई जो मरीज भी वहीं आके बैठे रहते हैं, डॉक्टर बेचारे भी वहीं बैठे रहते हैं। डॉक्टर जब थक जाए तो वहीं तकिया रख के लेट भी जाता है। तो डिसरिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में जब डॉक्टर रहता है ना, तो फिर वो उसके मेरे ख्याल में फिर उसका एक बेड पे 3 मरीज, जैसे हम नहीं पढ़े थे लर्निंग एनवायरनमेंट, इस तरह डॉक्टर की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। डॉक्टर रेहाना, आपने लेडी विलिंगडन और लेडी एचिसन देखा हुआ है? देखा हुआ, कॉरिडोर में मरीज रो रहे होते हैं बेचारे। वो तो अल्लाह कॉरिडोर का में वास्ता है, कंसल्टेशन हो रही होती है, वो तो वहां वही पे तो तो कह रही बड़ा हूँ, corridor में रो रहे होते। जी जनाब नंबर ऑफ मुझे तो लगी पेशेंट इतना होता है ये कि अंदर मामला लेबर रूम में जगह ही नहीं होती। वहाँ डिलीवरियां हो रही होती हैं, आया उठा उठा के जी लेके जा कॉरिडोर रही में ही, जी बिल्कुल होती, आया उठा ऐसे उठा ही। के लेके जा रही होती। लगता ही नहीं इंसानी बच्चे, ऐसा लगता है मजाक हो रहा है। यही जी तो हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेशेंट अपने बिस्तर लेके आया हुआ होता है और वो कॉरिडोर में ही लेटे हुए होते हैं हालांकि सब। जनाब इन दोनों से बहुत बेहतर है, मगर फिर भी मैं कहती हूँ गैर इंसानी सलूक, लेडी इंसानी विलिंगटन सलूक। सबसे ज्यादा रशी होता है वहां तो। मुझे याद है डॉक्टर कुरतुरैन को याद हो, हम हमें ना हमारी एमओस कहती थी कि जाओ अब कॉरिडोर का राउंड करके आओ, वहां पे जो पेशेंट है उनको सबको देख के आओ। लेडी तो वहाँ विलिंगटन की तो कॉरिडोर बात का ही भी ना राउंड करें। करते थे। लेडी विलिंगटन तो एक हाँ मुझे लेडी तो वहां विलिंगटन तो एक एंजाइटी अटैक हो गया था। मैडम यास्मीन राशिद ने कहा तुम लेक्सोटिनिल लो और घर चली जाओ, वो ऐसी जगह है। हाँ वहाँ समझ ही नहीं आती करना क्या है। मैडम बस लेडी यहाँ विलिंगटन, बड़ी सोफिस्टिकेटेड बातें कर रहे हैं जिनका लेडी कोई विलिंगटन ताल्लुक नहीं में बात हर डॉक्टर, मैं बात करूं मैडम? जी जी सर, करें प्लीज। जी सर मैं प्लीज। बता रहा हूँ कि लेडी विलिंगटन में तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि आया कौन है, नर्स कौन है और कंसल्टेंट कौन है। एवरीबॉडी इज शाउटिंग इन सच ए ब्यूटीफुल मैनर दैट यू कांट रिकॉग्नाइज हु इज हु, और सबने वो ओवरऑल से पहने हुए हैं। आप थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज से यू कैन मेक आउट कि ये शी सीम्स टू बी आया, या उसकी आपा है, या दूसरी है, या इस तरह से कर सकती हैं, क्योंकि देखने को तो सारे लोग एक ही तरह बिहेव कर रहे होते हैं। एवरीबॉडी इज इन हरी, और ऐसे ही लगता है जैसे कुछ होने वाला है अभी, और वाकई होने वाला तो होता ही है, लेकिन वो सर सिचुएशन के देखे ना, हिसाब से वहां पे सारी वजह सर एनवायरमेंट की वर्कलोड होती है। वर्कलोड वो बहुत ज्यादा है। एनवायरमेंट भी, जब वही जी डॉक्टर प्राइवेट एनवायरनमेंट। सेटअप में बैठा है साफ सुथरे कमरे में, एक मरीज को एक डॉक्टर देख रहा है, खुद ही उसका एटीट्यूड ठीक हो जाता है। वहाँ मरीज बेचारे धक्के दे रहे होते हैं बेड के लिए, पेशेंट नहीं, लाटे उसमें होते हैं मैडम कि थोड़ा सा अगर तुम आते क्यों पैसा बैठते हो। इन्वॉल्व आ जाता, पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना। वहां पे आप प्राइवेट पेशेंट देख रहे होते हैं, यहाँ पे आप नहीं गवर्नमेंट सर, सेटअप बहुत सारी, आपको पता है मेयो में हम हाउस शॉप जब हमने शुरू की थी, मैं पेशेंट देख रही थी और दूसरे पेशेंट के टेनेंट मेरा पर्स लेके चले गए, ठीक है, उसमें नहीं नहीं सर, चाबियां पैसे पैसे की सब। बात नहीं यानी होती। कि डॉक्टर ये वहाँ बात बड़े मिसाइल में होता है, वहां पे बहुत इन्वायरमेंट बहुत मुश्किल है काम के लिए। नहीं नहीं, वैसे भी सर ये जो बात आपने पैसे की है ना, जो ट्रेनी होता है ना उसको सिर्फ टीचिंग से होता है अपने से। उस टाइम पैसा उसका ना एम होता है, ना कंसर्न होता है, ना कुछ होता है। ये जो बात है कि ये पब्लिक सेक्टर में ठीक डील नहीं करते, ये ट्रेनी के लेवल की बात नहीं है। हाँ, प्रोफेसर एसोसिएट काम टाइम देते हैं कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसों में रहते हैं, लेकिन ट्रेनी का कोई ऐसा मेंटल इशू नहीं है कि उसको पैसे से कंसर्न है कि यहाँ पैसा नहीं है वहाँ पैसा है। ये मामला तो ट्रेनी के लेवल के नहीं है। ट्रेनी बेचारा तो सिचुएशन कंट्रोल करते करते ही मर जाता है वहां आधा खुद।
नहीं मैडम ये ठीक है, आजकल लेकिन वही ट्रेनी जब अपनी क्लिनिक में जाके बैठता है ना तो वो कंफर्टेबल होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इसमें। सर आप उसके क्लिनिक का एनवायरनमेंट भी तो देखे ना, हाँ इतना वो अपना जबरदस्त कर लेता है एनवायरनमेंट। उसका। यही लेकिन मेरा सर पॉइंट है आप जुबैदा। गवर्नमेंट सेक्टर में जाके एनवायरनमेंट तो देखें, वहां पे तो डॉक्टर की बैठने की जगह ही नहीं, जगह ही नहीं है, नालियां वेरी बनी राइट। हुई हैं, मरीजों ने कॉरिडोर में देगचियां चूल्हे आटा रखा हुआ है, साथ मरीज लेटा हुआ है, साथ ही वो बेचारे अपना खाना गर्म करके पका के खा रहे हैं। वो 10-10 दिन तो पता नहीं कश्मीर से पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बेचारे पेशेंट उठ के आए हुए होते हैं। उसी जी कॉरिडोर बिल्कुल बिल्कुल, सब ऐसे वहां पे तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना। अच्छा, एक ये बार सारी मैं जब डिस्कशंस हाउस जॉब रियली कर रहा वेरी यूजफुल। जी सर, जी सर। मैं जब हाउस जॉब कर रहा था सर्विसेज हॉस्पिटल में 2009 में, तो वो सर्जिकल स्पेशल वार्ड था और उसमें उन्होंने सर्जिकल स्पेशल वार्ड में एचओस कम थे बहुत, तो हम लोग 2-2 की ड्यूटीज लगती थी फुल वार्ड। तो उसमें रात को बार बार पेशेंट आता था, इंजेक्शन लगाते हैं और ये करते हैं। तो हमने अभी स्टार्ट की थी सर्जरी हाउस जॉब, तो उसमें हम ज़्यादा छोटे भी थे और ये चीज़ें जब मैं बच्चों को गाइड करता हूँ उस वक्त हमने खुद एक्सपीरियंस की। तो वो मैं जब जाता था, डॉक्टर साहब मैंने दर्द बड़ा हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो, ठीक है लगा के आगे। रात के 1 बजे हुए थे, फिर हम डॉक्टर रूम में आके बैठ के, मैं था मेरा फ्रेंड था, दरवाजा बंद कर दिया, तो वहाँ आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब बेल होगी तो तू जाएगा बाहर, वो कहता नहीं तू जाएगा। तो वो ऐसे मैंने कहा आप देखी बेल होगी कोई आएगा, बीदा बीबी नु इंजेक्शन ला दो। आपस में हम इस तरह वो चिट चैट कर रहे थे। अब वो जो पेशेंट बेल हुई दोबारा, तो वही पेशेंट करी थी दोबारा बेल। जब दरवाजा खोला तो गलती से मेरी हंसी निकल गई। अब वो जो हंसी निकली, पेशेंट को नहीं पता था क्यों हंस रहे हैं, तो उसने कहा डॉक्टर साहब तुम मजाक उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो। उस चीज ने मुझे इतना टच किया, उस दिन के बाद से मैं ये चीज अभी भी फील करता हूँ कि उसने क्या सोचा होगा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं और ये वो। मैं फिर उसको बिठा के गाइड किया कि हम आपस में भी बात कर रहे थे। वो आप जब आई हैं तो उस टाइम पे हम लोग अपना चिट चैट कर रहे थे आपस में, उसको बड़ा काउंसल किया, गाइड किया और उसके बड़ी शर्मिंदगी भी हुई। तो ये चीज मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ कि हमेशा जब भी आप हॉस्पिटल जाओ तो आपस में भी इस तरह गपशप या हंसी मजाक करते हो ना, तो पेशेंट को नहीं पता होता कि ये हमारे पे हंस रहे हैं या हमारे ऊपर देख रहे हैं। तो इस चीज को मैं अब सिखाता हूँ बच्चों को कि इस चीज को बड़ा मरीज फोकस किया करें आप, बॉडी लैंग्वेज और ये जो। पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस ऐसे हो जाता है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, फोर्सियर ट्रेनिंग थी मैं, तो पेशेंट एक था, उसका प्री टर्म बच्चा था, तो वो काफी दिनों से वहां थी। जो जब भी ड्यूटी चेंज होती है, हर कोई जो आता वो उससे कॉन्सेंट लिखवाता। कभी अगर बच्चे को कुछ हुआ तो आपको बता दिया गया बच्चे की जान खतरे में है, वो बिफोर टाइम है, डिलीवरी हो गई, तो इसको उन्होंने कहा जी इसको चिल्ड्रन शिफ्ट कराना है, जिनास से नर्सरी प्री टर्म के लिए अच्छी नहीं है, कोई इंक्यूबेटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो उनसे चिल्ड्रन की कॉल लिखवाई थी, एम्बुलेंस। तो बार बार लिखवाते थे कि आपको ये बता दिया गया चिल्ड्रन का, आपने एम्बुलेंस अरेंज करनी है, आपने बच्चा लेके जाना है। वो बंदा बेचारा 1 वीक रहा, 3 टाइम जो ही ड्यूटी इंटरचेंज होती थी, हर कोई आके उससे बाहर, वो खुद बाहर है, लेबर रूम अंदर है, मरीज भी अंदर है, हर कोई जाके उसको साइकोलॉजिकली जी लिखे आप यहाँ साइन करें। हर कोई अपनी रोटेशन के साइन कराता था कि मेरी ड्यूटी में अगर आईयूडी हो गया या कोई मसला हो गया तो मुझ पे बात ना आए जी। उसके बाद वो खैर उसका सजेरियन हुआ। सजेरियन के बाद मैंने एमओ गई है मेरे साथ जो थी बच्चा हैंड ओवर करने, वो मियाँ कहता मैम हमारा तो बच्चा ही नहीं, हम तो बच्चा ले भी गए, हम तो उसको चिल्ड्रन शिफ्ट भी कर रहे हैं, ये तो हमारा बच्चा नहीं है। तो मैं कहा किसी और का तो नहीं देखो कि दे दिया था इसको, वो तो सजेरियन मैं खुद कर रही थी। तो उसके बाद जी, उसके बाद जब डिग आउट किया गया कि जी तो किसी का भी बच्चा नहीं दिया हुआ था। वो पेशेंट से कहता नहीं मेरी तो बहन है वहां, मैं तो अपनी बहन को कहा हुआ था तुमने आज ट्यूशन नहीं जाना, वो तो चिल्ड्रन बैठी हुई है। तो उसे कहा जी दो अपनी बहन का नंबर, उसने कहा नहीं मैं तो घर हूँ। वो साइकोलॉजिकली इतना हिप्नोटाइज हो गया कि बार बार उसको सुन के लग रहा था कि मैंने सारा कुछ ही कर दिया हुआ है, बच्चा भी चिल्ड्रन शिफ्ट करा दिया हुआ है, मेरी बहन है वहां, ये तो बच्चा ही मेरा नहीं है, हम तो कर चुके हैं सारा कुछ। तो बाद में उस बेचारे को उन्होंने कहा जी इसको कोई स्लीपिंग पिल दें, इसको रिलैक्स करें। दूसरे घर के अटेंडेंट आए, लगातार बाहर बैठ बैठ के उस बेचारे की ये हालत हो। तो इस वजह से पेशेंट जिस मिजरी में से गुजर रहा होता है ना, वो डॉक्टर तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो साइकोलॉजिकली क्या टॉर्चर हो रहा है। वो ज़हनी मरीज हो जाते हैं बेचारे बाहर, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, रश इतना होता है कोई जाकर उन्हें बता रहा नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है मरीज के साथ, आगे क्या प्लान होना है। काउंसलिंग तो जीरो है पब्लिक सेक्टर में, तो जीरो। अदरवाइज भी हम काउंसलिंग पे उतना एम्फेसिस नहीं करते, हम मैनेजमेंट की तरफ हमारा बहुत ध्यान है। इसीलिए तो कम्युनिकेशन का कहा जाता है कि जी कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी कर लो, आप कम्युनिकेट नहीं करते, पेशेंट सेटिस्फाइड हो नहीं। अब बड़े लायक फाइक हो, आपने मरीज की जान भी बचा ली लेकिन आपने काउंसल नहीं किया,
ना आपने कम्युनिकेट किया, पेशेंट आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप जो और मर्जी अगर कर, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर कंप्लाइंट भी नहीं होगा सारा शोर मचेगा, सारा कुछ ही होगा। तो बिल्कुल पब्लिक सेक्टर में तो काउंसलिंग जीरो है। मैं जिना में थी तो राउंड करते थे कंसल्टेंट आके, तो मैं देखती थी आईयूडी है ना, कोई मरीज से बात नहीं करता था, आपस में बात करते थे। अच्छा इसका आईयूडी है, इसको लेबर में शिफ्ट करा दो, इसकी इंडक्शन होनी है। अच्छा इसको क्या है, इसका मिसकैरेज है, इसकी टीएनसी होगी, इसकी इतने बजे लिस्ट पे रख दो। अच्छा ये क्या है, कार्डियक पेशेंट है। मरीज ऐसे लगता था जैसे कोई इक्विपमेंट टूल नीचे लेटा हुआ है। हालांकि मैं उस ऑफिसर की, मुझे काफी फीलिंग आती थी कि यहाँ क्या हो रहा है। और 15 मिनट में राउंड खत्म भी हो जाता था शुरू होने के बाद, 15 से 20 मिनट में कंसल्टेंट का। ये मैं नहीं, हर बंदा ही मानेगा कि मैक्सिमम 30 मिनट का पूरी वार्ड का राउंड। भाई 10 मिनट में तो आप एक मरीज को कंसल्ट करते हो, 30 मिनट में कौन सा राउंड होता है जो पूरी वार्ड का हो जाए। रश जरूर होता है, लेकिन हम खुद भी बड़े इग्नोरेंट। जी मैम, इससे नेग्लिजेंट मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि हम कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो ओवरवर्कड हैं, लेकिन इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते टुवर्ड्स योर पेशेंट, नहीं क्योंकि आपका जस्टिफाई करना पर्सन उन्हें होता था, हमारी टी ब्रेक का टाइम है, हम जल्दी जल्दी राउंड करना है। उनके एटीट्यूड डेवलप हो गए हुए हैं कि जी मरीज से तो बात ही नहीं करनी। पब्लिक सेक्टर में वो इंसान जानते ही नहीं, डॉक्टर मरीजों को इंसान जानते ही नहीं पब्लिक सेक्टर। ये बात फिर आपका चाहे हम पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो जिसको जिसमें आप मर्जी बुरी लगे, जो मर्जी लगे। लेबर रूम में मैं थी तो डॉक्टर बुलाती थी, बीबी इधर आ, बीबी इधर आ। मैं चूंकि मिलती में साथ जाती थी ना, मेरा प्रॉब्लम ये था, 2 जगह पे जॉब कर रही थी, तो वहां तो मुझे बिल्कुल अपोजिट इन्वायरमेंट मिलता था। तो मुझे होता था कि यहाँ चीजें ऐसी ना हो। तो मेरा तो सारा दिन इसी झंझट में गुजर जाता था कि ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। जब फोर्टी थी, ऐसे नहीं बुलाना, ऐसे नहीं करना, आराम से बात करो, पहले काउंसल करो, पहले ये करो। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं ही आधी पागल होगी इन सारे चक्करों में, कि अगर मैं शायद अमीर का एक्सपोजर साथ साथ मेरा ना होता। वहां सारे डॉक्टर आशीष थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरीके से मरीजों को, वो अगले अपने पब्लिक सेक्टर में भी सुबह 7 बजे जाते थे। तो ये बात होती है कि जी आपकी ट्रेनिंग किस तरह हो रही। तो जो बाकी देखने वाले डॉक्टर थे ना, जो कंसल्टेंट किस तरह काउंट करते थे, कल को वो वैसे ही कंसल्टेंट तैयार हो जाते कि ना मरीज से बात करनी है, ना कौन करता है, ये डमीज पड़े हुए हैं और इनको बस हमने मैनेज करना है और यहाँ से दिखा देते। और ये भी बहुत बड़ा एहसान है। इस वजह से हमारे भी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वो है गैप्स, चाहे हम उनको एडमिट करें ना करें। जो एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग की है ना, वो फुलफिल नहीं हुए। हम और कामों में ज्यादा टाइम गुजारते हैं, हम जैसे कि जो ट्रेनिंग हमारा साइंड जिम्मेदार है उसको हम ट्रेन करें। या हम मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ना, तो ये हम खुद को पॉलिश कर रहे हैं। बाद में कल को जब हमारे पास ट्रेनिंग है ना, उस पर ये कैसे अप्लाई करना, हमने उसको टाइम ही नहीं देना। ये एक बहुत बिग रियलिटी है, वो जितने भी लोगों को बुरी लगे। that's the truth that it's really very important कि जी हमारे theoretically we know so many things, but when it comes to practice, most of us fail there. And it's not because we don't know things, it's because of many of these factors that you just talked about. डॉक्टर रिहाना ने बहुत रियलिटी बोली है। डॉक्टर बिल्कुल, रिहाना बहुत आपने अच्छी बहुत बात है। रियलिटी बोली है। ये कम्युनिकेशन विद द पेशेंट ओनली नहीं, कम्युनिकेशन विद द कोलीग भी ऐसा ही है। प्लीज उस पे भी थोड़ा एम्फेसाइज करें। डॉक्टर रिहाना आप चाहती हैं मुझे पटाई हो, मैं वापस जाऊंगी। नहीं नहीं, आप बहुत ट्रुथ बोल रही हैं, एंड दीज आर दी फैक्ट्स कि हम अपने अगर सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड कम्युनिकेशन विद द कोलीग, कोलीग्स की बात नहीं, डॉक्टर आयशा को बताते हैं, कोलीग्स की बात ये है कि दोनों इज जी जी जी। जहाँ हमारा ट्रेनी होता है ना, वो बेचारा 10 टाइम्स फेल हो रहा है, वो 6 दफा फेल हो रहा है, वो 8 दफा, क्योंकि उसे कोई गाइड ही नहीं कर रहा। ये नालायक है उसके, जो कोई 6-8 दफा फेल हुआ है, चाहे वो पार्ट 1 में 2 में, उसको बुला के पूछो कि आपका सुपरवाइजर उसने कितना ऑन किया आपको, उसके बाद आपको बुलाया हो, आपको पढ़ाया हो, आपको समझाया हो कि नहीं भाई तुम फेल हुए, क्या गैप्स हैं, मैं देखूं, मेरी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बड़ी चीजें हम किताबी करते हैं और उनको किताबों में रहने देते हैं, बड़ा कुछ सिर्फ हम अपने लिए करते हैं कि हमने एक्सेल कर, समझ आइए, और उनको बाद में अप्लाई नहीं बिल्कुल करते। ठीक मैडम, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह मैडम, जज़ाकल्लाह डॉक्टर रिहाना इस पे आप रोशनी डालने का। डॉक्टर रिहाना यू आर वेरी थम्स ट्रू। अप। बिल्कुल सही बात है कि आपने। अच्छा, मुझे इस सारी डिस्कशन से मुझे एक बात बताइए कि आई वाज गोइंग टू आई हैड बीन टू वन ऑफ द ग्रुप्स जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 2 लोग मेरे ख्याल से सऊदी अरब से भी हैं। तो वुड यू इवन अगर सऊदी अरब में हो या पाकिस्तान में हो, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस के अलावा जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो क्या किस तरह से इंटरवीन करते हैं इन आवर कम्युनिकेशन? कैन वी टॉक अबाउट दैट?
how language acts as a barrier to communication. Well, I think, madam, basic language requirement we should fulfill. Only then we can handle the patient, or we can go for the consultation of the patient. Even if you have a barrier, you have a interpreter with you. I have seen that there is a lack of doctor-patient relationship because of that interpreter. You cannot communicate that positively, or there are certain things, for example, they are not in that regard, they are confidential for the patient, and they should not be disclosed to the interpreter as well. Like जिस तरह मैडम ने भी कहा था कि गायनी की कुछ issues हो सकती हैं, तो उसमें unless you are communicating with the specific tone, they will not be able to give you answer. So even interpreter is there, but still you lack doctor-patient relationship and of course empathy. And Most of the situation which Madam here you're talking about a proper interpreter, a proper translator, whereas in Pakistan I have not seen that in our healthcare systems we have any translators. Yes, Like, we do not have. For example, if in Lahore, तो उनको क्या है सिलसिला? कुछ भी नहीं. हमारे पास आयाज होती हैं who sometimes they translate जो है wrongly. जी हाँ बिल्कुल. तो इसका क्या सिलसिला? ये हमारी जरूरत नहीं है क्या? मैं एक 4th ईयर का एक फनी वाकया सुनाना चाह रही हूँ रिगार्डिंग लैंग्वेज. मैडम 4th ईयर में हमारी रोटेशन शुरू हुई थी सर्जरी में, और शुरू में तो जब हिस्ट्री नए नए सीख रहे होते हैं एज नोविस, आपको पता ही है कि कोई हाल नहीं होता हिस्ट्री का. तो एक दिन एक पेशेंट आया, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम वर्ड्स. उसने कहा कि जी मेरे पेशाब में रुकावट है. तो हमने सारी उसकी हिस्ट्री ले ली, यूरिनरी रिटेंशन की, सारा कुछ, और हमने उस दिन अपनी तरफ से पूरे बैच ने मिलके बहुत जबरदस्त हिस्ट्री ली थी. बड़ी खुशी खुशी हम गए, प्राउडली गए अपने जो हमारे सीनियर रजिस्ट्रार थे उधर ऑफिस में, एंड वी प्रेजेंटेड टू हिम. डॉक्टर कुरतुलैन माइट बी रिमेम्बरिंग दैट. और जब सारी हिस्ट्री हमने उनको सुना दी तो उसके बाद उन्होंने ना चाचे से पहला सवाल ये किया, चाचा आपका छोटा पेशाब रुकता है कि बड़ा पेशाब रुकता है? He was basically suffering from constipation, and we had history taken entirely of urinary retention. So that's how, you know, if you don't know the commonalities of language or differences of language, you can end up making an entirely different or wrong diagnosis. That's true, and the connotations as well. They're really very important. What connotations people put with words. So this is really important. You see that I also understood it like, you know, urinary whatever you're saying. But the thing is कि वो देखें कितना फर्क पड़ जाता है कि कहाँ से आप उसको डायग्नोस करोगे, आप सीधे देख लेंगे. अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के कोई experiences हो डॉक्टर सरिया जो is it सारिया or सरिया? सारिया. हाँ, मुझे सरिया क्यों बुलाती है? Because I constantly kept on saying Dr. Saria, and then I realized not Saria, Saria is something else. Thank God. I'm so sorry about that. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. I am Dr. Himayatullah. I am from Saudi Arabia. Since I have worked in Pakistan and also here in Saudi Arabia, so yes, in Pakistan there is a problem with the language, because you know the language changes every 15 kilometers. So there are a lot of problems, and it is not because of the, you know, it is because of the rush which we are facing there in the tertiary care hospitals. So burden zyada hota hai, aur is tarah yahan pe here in Saudi Arabia what happens that there is not that much, the system is organized. You have to go first to the primary care and then they will refer the needed patients to the tertiary care. So there is not that much rush in the tertiary care. Even there, the language difference is there. Here people, you know, speak Arabic, and a lot of the other nationalities, they speak their, they use English or maybe Urdu or like this. So due to, you know, the facilities available here,
you can have a mean of communication here. Uh, you will find someone who will communicate the things to the doctors or to the patients. So here is the system is organized. So organization of system is very much important, which is not we have uh, read all these things in the books, that we have to apply this and we have to do the non-verbal communications, like you have, जी if you cannot communicate, you will you will use gestures, you will elaborate the things to the patient, that if he can't understand you, then you have to elaborate, you have to make the gestures. So that we used to learn in the books, but we can't apply, and we don't apply, yes. But here I think the system is organized, and these things are applied. So that's my experience regarding these two places. थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा लैंग्वेज के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी मुझे बताइएगा कोई आप लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हों कि जैसे पंजाब में ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल मुझे खुद जो है पंजाबी बहुत अच्छी नहीं समझ आती, लेकिन समझ आती थोड़ी बहुत। लेकिन देखें, जब पेशेंट्स आते हैं, दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, दे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आप लोगों के सेटअप्स के अंदर जब आते हैं तो दे यूज डिफरेंट होमोफोनिक एक्सप्रेशंस, दे यूज डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस। फॉर इंस्टेंस, जैसा पेन एक वर्ड, जैसा एक पेशेंट कह देता है कि जी मुझे पेन हो रहा है। अब पेन हैज डिफरेंट connotations, it has different meanings, and all the meanings are not the same. You see, मरोड़ अलग मीनिंग है, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ और कहते हैं, हाँ खिंच पड़ रही है, ठीक है, या आप उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो डॉक्टर विल हैव टू, इफ पेशेंट सेज जस्ट एज कि जी मुझे पेन हो रही है, तो डॉक्टर को उसको ऑब्वियसली ही हैज टू गो डीप डाउन टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट ही इज यूज्ड, कि इसका मतलब क्या है। ही हैज टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, सो ही हैज टू बी इन द इसमें क्वेश्चनिंग। जी जी सर। मैं तो पेशेंट से ये कहता हूँ कि वो खुद उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि जी अच्छा बताएं मुझे कैसे ये होता है, अगर आपने कुछ कहा है तो दो मैं छोटी छोटी बातें आपसे शेयर कर दे। तो मैं आई वाज पोस्टेड इन बदीन, और वहां पे ए पेशेंट केम टू मी, ही सेड कि डॉक्टर साहब पेट में सूर है। So I was astonished. I thought probably he's confessing in front of me that he has taken some haram cheese और कुछ इस तरह की है उसने ली है और उसकी वजह से वो कह रहा है। हालांकि सूर पेन को कहते हैं, आपने पेन क्या लिया, तो वहां से मुझे याद आया। तो आई वाज वेरी वरीड कि मैंने कहा ये मेरे आके बता रहा है, शायद मेरे सामने कन्फेस कर रहा है। सो इस तरह हो सकता है। सेकंड, एक पेशेंट हमारे पास आया, तीसरी दफा मेरे पास आया, तो क्या जी 2 दफा डॉक्टर साहब दवाई ले चुके हैं लेकिन ठीक नहीं होया, थोड़े वो लड़कियां ने थोड़े ट्रेनियां ने दवाई दी, तो इस प्रॉब्लम वाज के फेरे लगे हुए। तो एक ने उसे सर्क दे दी, दूसरे ने उसे स्टूजीरॉन दे दी, तो वो दो दफा दवाई लेके चला गया और छठे दिन मेरे पास आया। तो मैंने पूछा बाबा जी फेरे आप बताएं। ही वाज टॉकिंग ऑफ लूज मोशंस। सो फेरे वो लूज मोशन को कहते हैं कि एक दफा यू गो टू द वॉशरूम एंड कम बैक, तो उसको वो फेरा बोलते हैं। सो इसी तरह बहुत सारी कॉनोटेशन डिफरेंट हो सकती है। You have to request the patient to elaborate that कि जी अच्छा इसका क्या मतलब है, आप इसमें कैसा महसूस करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सारे डॉक्टर यूज करते हैं आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ है। ये दोनों बातें ही बड़ी डिस्करेजिंग होती हैं। ये नहीं कहना मसला तकलीफ, ये इटसेल्फ it opens doors to difficulty basically, and डॉक्टर आयशा हमें ये आगे कहना जो आप जी थैंक यू मैडम, आप बात करें। नहीं सर, आगे जो ये इंग्लिश आपने मीडियम बहुत के बच्चे जबरदस्त आ रहे हैं, जी जी जी। अब डॉक्टर रेहाना, आई कम बैक टू यू इन अ सेकंड। डॉक्टर नदीम ने जो बात की है, इन्होंने वेरी इंफॉर्मेटिव। देखें, जैसे आप यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट, questions are really very important in a consultation. And why so? Because they open the doors, they break ice, और आप लोगों को फिर समझ आती है कि किस तरह से उनसे आगे किस तरह से what is the way forward. So because questions, they are dialogic, they, you ask questions, you get answer to that. So that's really very important. Thank you sir. जी डॉक्टर रेहाना, आप कह रही थी कुछ?
आगे मैंने कहा जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो तो प्योरली इंग्लिश मीडियम के हैं ना, जो अभी इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, उनको जब वार्ड में लेके जाते हैं वो तो आधा मिनट बात नहीं कर सकते मरीज से उर्दू में भी। उनको लिखवाना पड़ता है कि आप लिखो उर्दू में कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं, उस तरह लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। पीछे वाले तो लोग फिर भी आपने बहुत अच्छी उर्दू बात की, मीडियम में, बिल्कुल। तो अभी तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है आगे ना। अच्छा, इसमें उनको मैं आपको एक बिल्कुल अच्छी अगर इजाजत दे मुझे मैडम। जी सर। अच्छा, मैं शेयर ये करना चाह रहा हूँ। एक तो बड़ी अच्छी खबर ये है कि हमारा जो एमबीबीएस का मेरिट था सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज का, ये 91.53 पे खत्म हो गया है। पेशेंट जो बात करने की आपने बात की है, उसकी रीजन ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो अब यंग लॉट आ रही है हमारे पास, बेसिकली ये सब्जेक्टिव टाइप नहीं यूज करते, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यस नो और ट्रू फॉल्स वाली सिचुएशन है। इसलिए दे गेट मैक्सिमम नंबर्स, उनकी थॉरो स्टडी होती। पेशेंट के साथ भी इसी तरह बिहेव करते हैं। उल्टी तो नहीं आई, पेशाब तो नहीं आया, बुखार तो नहीं हुआ, सो यस नो यस नो यस नो ट्रू, यस नो यस नो यस नो फॉल्स। सो ये बहुत ही बड़ा बैरियर हमारा अभी बनने जा रहा है और बन चुका है, जो हमें लगता है कि डॉक्टर के साथ, डॉक्टर पेशेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उसके कम्युनिकेशन पीछे मजीद रीजन ये है पुअर है इनका ना, जी, ये मजीद पुअर हो डिवाइसेस गई पे भी तो मैडम रहते हैं। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये फुली बहुत मैडम अच्छी रेहाना आपने बात की। अब देखिए ना क्वेश्चन, सर आपने जो बात की बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए ना क्वेश्चंस, हमने कहा कि क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन की नेचर क्या हो, ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो, या आप जो क्वेश्चन करें वो चेन रूल के थ्रू करें, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि आप जो है पेशेंट से ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि यू नॉट encouraging दैट पेशेंट टू ओपन अप। सो दैट इज रियली नॉट अ गुड सजेशन कि आप जो है ना पेशेंट को सिर्फ ऐसा क्वेश्चन करें कि वो आंसर करे यस और नो में, rather asking that question which opens the door, which is a dialogic question, is really very important. So very good suggestion. जी आप कुछ कह रहे थे? ये थैंक यू स्क्रीन मैडम, पे भी थैंक यू। रहते हैं ना लैपटॉप, फोन का अच्छा इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। आपस में भी चूंकि कम्युनिकेशन कम है ना, उस वजह से फिर वो कम्युनिकेशन का लेवल चेंज हो गया हुआ है। ज्यादा टाइम स्मार्टफोन्स पे, लैपटॉप पे स्टूडेंट्स गुजारते हैं, तो इस वजह से जिस अच्छा तरह मैडम, आपस में ये मुझे communication- बताइए, आपने लैपटॉप और ये इसका बात की है, तो डू यू थिंक दिस these are the things, these like computer, laptop, and these things, do they act as a barrier to बिल्कुल बैरियर communication? में, ये बिल्कुल बैरियर है। आपको जो कम्युनिकेशन एक्चुअली वर्बल चाहिए वो कम से कम होता जाओ, तो पेशेंट के साथ जाके आपने वर्बल कम्युनिकेशन करना। उसका फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे तो हमने ट्रीट नहीं करना, उसमें ये एक्सपर्ट है। अच्छा सर, ये मैडम ये मुझे बताएं कि जो यहाँ पर आप लोगों ने वीडियोस भी देखी थी, तो यू मस्ट हैव सीन दैट डॉक्टर he or she got engaged in using a mobile. So what impact it puts on the patient? मैम कैन आई टॉक? जी प्लीज। ये इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ये कब टेक्नोलॉजी जो है, इट कैन प्ले अ वेरी गुड रोल in communication. There are apps, there are websites, you have Google Translate. So I think the things have been easier now. The communication has been easier now because you have everyone has Google Translate in his palm. He can translate now. Now there is there are apps which will translate the things in the language. So you don't need you don't need to write it down, or you just say it to the app and it will translate it into the language you want. So I think these gadgets are now playing a very good role if you use it properly. Yes. So I think this is my opinion. But during consultation, if a doctor is using a mobile and that while the patient is talking, मेरी एक and फ्रेंड है instead of वो looking at the patient, डॉक्टर आयशा, मेरी एक The, फ्रेंड थी, अभी वो ऑस्ट्रेलिया से आई ना,
तो उससे वो कंसर्न थी कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। वो कहती वहां तो बड़ा हैक्टिक है, सुबह 8 to 4 जाना पड़ता है, और अगर आपको कोई कॉल आप अटेंड कर लो इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट लिख के चला जाता है कि जी डॉक्टर ने तो मेरी प्रॉपर बात नहीं सुनी, शी वॉज बिजी ऑन मोबाइल। वो कहती है आपकी कंप्लेन हो जाती है, 3 कंप्लेन हो जाए तो वैसे ही आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने आ जाता है कि डॉक्टर ने फोन पे बात क्यों की Yes, जबकि मरीज that's सामने बैठे। we can go on talk and talk and talk about this very important aspect. Oh man, son. आई थिंक मैम का फिर नेट का इशू हो गया। I'm so sorry it keeps breaking. I don't know what's the problem today. I'm going to share the screen again. Just read this sentence. Okay. 3, 2, 1. I'm going to just stop the share. So have you calculated the number of Fs here? How many of you found 3 Fs here? Raise your hands, please. Raise your hands only. 3 Fs? Okay, none of you. 4 Fs? सॉरी मैडम क्वेश्चन नहीं समझ आया। Well, I asked, I have just shown you a question, a sentence, a statement in which you had to calculate the number of Fs there, Fs. Did you count that? Should I share it again? जी Okay, I'm मैडम going to प्लीज share it शेयर again. कर जी देना। अगेन कर So sorry, I think आप लोगों को आवाज नहीं आई. You've got नजर to. नहीं आ रही, अच्छा, मैं आवाज भी आपको शेयर कर देती हूँ. देखें फिर ये communication gap थी. So I'm going to just share it again with you people. उसमें आप Fs को calculate करें, and I'm just going to show this statement to you for a half a second, half a minute, and I'm going to just stop the share. Can you see it now?
Okay, I'm stopping the share. I hope you people have calculated the number of Fs here. And 3, 2, 1. I'm stopping the share. Okay, now answer me this question. That how many of you found 3 Fs here? Please raise your hands. Those who think that there were just 3 Fs. Okay. So 3 people think there were 3 Fs. All right. How many of you think there were 4 Fs? All right. So Dr. Salman and Khadija, they think that there were 4 Fs. Now Pakiza, Sarwat and Hamayatullah Khan can पापा वो फोन कर रहा है मेरे नंबर पे. What are you saying? Okay, how many of you think that there were 5 Fs here? I think more than 5. Okay. So Dr. Nadeem, how many Fs were there? I think 6 or 7. Madam, 6 F. Okay, even if you're saying, who said 6? Myself said and 6? Ayesha. Myself and Dr. Ayesha. Madam, Dr. Shaheen, 6 F. No, sorry, Okay, that's Dr. wonderful. Shaheen. Dr. Shaheen said that there were 6 Fs. So you see, there were 6 Fs. Now, this is a perfect analogy of whatever we talked about today, that how we give, importance to this little details that are there. So how many of you think that there was a 2-lettered word that we missed here in counting F? Off का जो word था ना, off का word, इसमें अक्सर लोगों ने miss किया होगा. And when I read this ऊपर वाले 2 मिस for कर the दिए very मैंने. first time, I also counted 5 Fs here. So the thing is, it happens when we are not paying attention to this minute details. So this was a perfect analogy of whatever we talked about today, that how important is giving importance to the smallest or this minute details when we are in communicating with others. So it was very, very nice talking to you all. Thank you so much for all the details and the perceptions that you have given, your insights about the topic. And thank you so much. Dr. Pakiza, you raised your hand. Do you want to say something? अनरेज कर रही थी तो वो डबल क्लिक हो गया. अच्छा, चले, that's fine. So do you want to share anything else with me? You want to say something about today's workshop? Thank you so much for the interactive Thank you, session. madam. I Thank really you so enjoyed it much. a lot. Thank you. थैंक यू डॉक्टर आयशा, बहुत अच्छा था Thank you, सेशन. ma'am. Thank you so much, ma'am. It was highly informative and interactive. एक picture लेते हैं. So thank you, participants. This is Dr. Junaid. I just wanted to say that this is the last day of the 3-day session. As already informed, we're going to have this discussion about our assignments later today, and I'm going to facilitate that discussion about the assignments for this module between 5:30 to 6, I think, or is it 5 to 5:30? I'll check again, but whatever that time exactly is, I will be there with you. I just wanted to say that I hope that all the participants actively participate through this last day as well, so that when the assignment is discussed later today, we can have a fruitful discussion on how to proceed with that assignment, because the program, how it's designed, is completely different from how the Masters in Health Professional Education program is run, or an MSc in Medical Education or Health Professional Education program is run. It's a completely different paradigm of health professional education programs, in which we are supposed to learn ourselves through hands-on activities, to doing stuff our own, developing a portfolio, building on our collective experiences, and taking it on over the next 2 years, publishing that experience as well. And then hopefully we get into that momentum of carrying it forward for the rest of our lives. So see you in the next session, and have a great day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Take a picture. हाँ जी. Thank you, sir. अपनी सुबह सुबह वाली faces
please. Thank you so much. My daughter just came in and she didn't know that I was in the meeting and she just started laughing or something. चलिए जी, लारेब का बैकग्राउंड चेक करें, है ना, बीच पे हाँ, मैं बैठी देख है। रही थी बैठी लारेब हुई का है। बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। डॉक्टर आर्या डॉक्टर म्यूट। गई हैं। कौन चला गया? डॉक्टर आयशा? ओ मैम एक सेकंड में बुलाती हूँ। उनकी भी अटेंडेंस लगनी है। नहीं, उनके साथ पिक्चर लेनी है ना। बेसिकली मैं आपको ये बताऊं, हम ये पिक्चर इस तरह से ले रहे हैं कि वी विल बी मेकिंग अ कोलाज एट द एंड ऑफ द होल सेशन। उसमें जिसकी सबसे प्यारी जो पिक्चर होगी, अभी तो किसी ने यूं किया हुआ है, किसी ने यूं किया हुआ है, तो वो हम बेस्ट पिक्चर उठा के वहां पे लगा लेंगे ताकि एक नेचुरल चीज भी आ जाए और द बेस्ट पिक्चर भी आ जाए और सारे फैसिलिटेटर्स की टॉप पे पिक्चर आ जाए। सारी लेडीज अब आई तैयार है होती डॉक्टर? हैं। अच्छा, I thought this is the कल से फिर attendance तैयार होके and बैठेंगे। we have to show our मैं face. भी अटेंडेंस ही समझ रही थी। अटेंडेंस तो जूम खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है ना। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, सब पता है। डॉक्टर यानी मैंने तो इसलिए नहीं लगवाई, मुझे पता था अटेंडेंस के लिए जरूरी नहीं होती है ना। डॉक्टर आना आपसे नहीं है इधर। मैंने इसीलिए नहीं लगवाई, मैं कहा तैयार होके लगाएंगे। डॉक्टर सारिया, मेरा तो यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, आप डॉक्टर आयशा कॉल करेंगे दोबारा? मैं देखती हूँ। मैं व्हाट्सएप पे करी हूँ, आई थिंक शी इज नॉट पिकिंग। मुझे उनका नंबर भेजें। अच्छा, एक सेकेंड। व्हाट्सएप पे ना करें, डायरेक्ट करें। I have a question. मेरा कनेक्शन ड्रॉप हुआ था, अभी तक क्या हुआ है? कुछ सॉरी। नहीं हुआ। पिक्चर हो गया है तब से, पिक्चर ही नहीं हो रही हमारी। ओके बस ठीक है। चलो, रेब आप किधर बैठी हुई हैं? हम तो आपका बैकग्राउंड एंजॉय कर रहे हैं। ये वर्चुअल बैकग्राउंड ला रही है, बड़ी तेज है इसमें। पाम ट्रीज वाला ऐसे लग रहा है मलेशिया पता नहीं किधर बीच पे बैठी हुई है, मालदीव्स में। मैम enjoy जान कर सकते रही है तो वहाँ। हम तो एंजॉय कर सकते हैं। मैडम लहरों पे मछलियां भी नजर आ रही हैं। रियलिस्टिक किस्म का बैकग्राउंड। डॉक्टर खदीजा, आप तो सोई भी लग रही हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मेरे साथ मेरी बेटी थी जो सोई हुई थी, ये उसका असर है। और अब वो जाग गई और अब वो उठा नहीं पीछे रही हैं। खुदक रही है। अच्छा, सुबह सुबह उठना पड़ता है, साथ ही बच्चे बेचारे भी उठ जाते हैं, वो भी साथ क्लास ले रहे होते क्या हैं। क्या 11 से 11:30 ब्रेक होनी थी? क्लास के शोर से ही उठ जाते हैं बेचारे। जी मैडम, और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ बैठे हमें सुनाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो बेबी, सच अ क्यूट बेबी। डॉक्टर खदीजा, इसमें मेडिकल एजुकेशनिस्ट बन जाना। हाँ, साथ साथ पढ़ी है मेरे, यकीन करो। ये बददुआएं दे रही है। वो KG 1-2 की बजाय उधर गई है डायरेक्ट। ये तो आपकी आवाज से उठ जाती होगी बेचारी। जी वो मैं बीच में बोल रही थी, इसी वजह से थोड़ा जल्दी हाँ, भी उठ गई है। और अकेली लेट के सोएगी भी नहीं और आवाज से उठ भी जाएगी। तारिया भी ब्रेक नहीं थी मेरी बेटी 11 से कहती वी हैव टू गो 11:30? टू स्कूल। ब्रेक की पिक्चर का ब्रेक वेट टाइम कर रहे थी हैं। 5 ऑफिस मिनट जा की। रहा हूँ। पिक्चर का वेट कर रहे हैं। नहीं चले मैडम जल्दी हो कर गई लें। बस प्लीज। वैसे सर ज्वाइन कर रहे हैं। सर के साथ पिक्चर कर। नेचुरल प्रोसेसेस को डील करने गई है, तब वही तो कह रहे 5-10 मिनट ब्रेक दे दे। ठीक है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 30 मिनट्स ब्रेक है ना, उससे 5 मिनट पहले डॉक्टर आ जाए। पाकीज़ा कह रही है 30 मिनट्स। सर जुनैद आ गए। सर कंघी करके आए आप? सर तैयार होके आए हैं।
है ना? सर आप म्यूट हमें पे होने नहीं। सर आप म्यूट पे हैं। अनम्यूट करें सर। हाँ, मैं मुझे ताव पे दे रहा हूँ। हाय खदीजा, हाउ आर यू? I'm good, alhamdulillah, sir. How are you? I'm very well, thank you very much. लो जी, पिक्चर मैंने की है। हाउ डज इट, ये अक्सा को जो आती है ना सारी की सारी टेक्निक्स, ये कमाल ही है। बस हमें हमारी फैसिलिटेटर चाहिए, हमारा वो सेशन मैम आयशा चाहिए। हाँ जी। मैम आयशा जो है ना इस वक्त वो कहती है कि मैं अक्सा डॉक्टर जल्दी जल्दी ले लें, सर भी ड्रॉप ना हो जाए। गेटिंग रेडी। वो नदीम हाँ, साहब बस नहीं है सर, मैं आपको बड़ा ढूंढता रहा था 2 दिन। फाइनली मुझे आयशा की पिक्चर में वैसे भेज दूंगा बाद। अच्छा चलें, ठीक है। फिर डॉक्टर सारे पिक्चर ले लें। सर ने हाईजैक कर लिया उनका सेशन, मैं बता रही हूँ। सर रेस्ट पे हैं हाईजैक भाई। किया, मैं आके मैंने शुक्रिया अदा किया। एक ही बात है, एक ही बात। सर बैठे हैं मैम, इट्स ओके। हाँ, सर का पूरा हक है। चलें प्लीज पिक्चर। तस्वीर चलें। हो गई हो तो हमारे 1 भूखे 1 चेहरों 2 को कुछ मिल जाएगा। 1 2 3 क्रिच। क्रिच हो गई। डन। थैंक यू। हो गई। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। That was a See you very, very later। और 5 See you मिनट half की an फिर hour जो है ना later. डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह 11:30 हाफ 5:30 आवर है। तो हमायतुल्लाह साहब भी हैं, गुड टू सी यू हमायतुल्लाह साहब। आई होप इट्स जो है ना वो decent hours in Kingdom of Saudi Arabia now.